अनुज गोयल सर आ गए कि एंटर हो गए कि अंदर? देवेंद्र जी कैसे हैं? हाँ सर स्टार्ट। साहब नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। आपकी तो आज काउंसिल मीटिंग होगी ना सर? आज लंच तक थी सर, लंच से पहले हो गया था, अकाउंट्स का था एजेंडा, तो 12 बजे खत्म हो गया था सर। अच्छा। कल फिर है वो डीसी केसेज है सर। अच्छा सर प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं अभी। यस सर। हाँ जी। ओके सर। Good evening to all the respected members and my dear friends who have joined us today on this webinar organized and hosted by Patna branch of CIRC. Today, we are blessed to have Shri Amarjit Chopra, past president of ICAI, who has given us his time and is directly streaming from Canada at this moment. I, C. Ramshankar, Secretary Patna branch, welcome you sir on this important evening where we all are going to learn knowledge and practical aspects of standards of auditing. The only good side of the COVID pandemic is that we can gain knowledge from our eminent faculty in any part of the world. This was not possible before this era of pandemic. Now I would like to request our Vice Chairman, Sr. Mukul sir, and absentia of our Chairman, Shri Parvin Singh sir, to please welcome our honorable speaker of the session and the respected members who have joined us today. Mukul sir. Thank you, C. Ramshankar. It's a great opportunity, and I think Patna branch has organized seminars, national conferences, but this is the first time international conference is being organized as Amarjit Chopra sir has joined from Canada. So it's a great opportunity for us. I heartily welcome C. Dinesh Jain sir, who is always there in the meetings of the Patna. C. Devendra Somani sir, who is always kind enough that he always spare time for Patna branch, and our own guest of honor for the today's session, C. Anuj Goyal sir. Whenever we call Anuj Goyal sir, he is always there, and he is very enthusiastic that whenever we are organizing any program, any webinar, any kind of knowledge sharing things, he is always there with us. Today, the topic is very important with us, and I hope that whatever it's always a pleasure to heard Amarjit Chopra sir, and when he is talking about this session, we all members will be getting benefit out of this one. Thank you very much. Thank you, C. Ramshankar. Thank you, sir. Thank you, Mukul sir, for your welcome speech. Now I'd like to request C.A. Dinesh Kumar Jain sir, Secretary CIRC, to please share some few words on today's program. Thank you, Ramshankar ji. Respected C. Amarjit Chopra ji, past president ICAI, और मेरे लिए तो भीष्म पितामह है। बहुत कुछ मतलब 19-20 साल से इनको सर को देखता आया हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिलता रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिलता रहेगा। और जैसे आज अनुज सर ने बताया कि वो ठीक 5 बजे आ जाएंगे और सर बिल्कुल ठीक 5 बजने में 2 मिनट पहले ही सर अंदर एंटर भी कर गए। और सर की आज एनिवर्सरी भी है। सर आपको बहुत बहुत बधाई। और सर सुबह 7 बजे वहाँ कनाडा में सुबह 7 बजे हमको ज्वाइन कर चुके हैं, तो सर ये काइंड एनफ है कि सर का कितना डेडिकेशन है प्रोफेशन के लिए। रेस्पेक्टेड सीए और फॉर्मल ड्रेस में टाई लगा के जी सर, यस सर, यस सर। रेस्पेक्टेड सी अनुज गोयल जी, सेंट्रल काउंसिल मेंबर, मेरे बड़े भाई जिनका स्नेह मेरे ऊपर हमेशा से रहा है। और अभी भी सर से मैंने बात करी, सर ने कहा आप चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा, और सब कुछ बिल्कुल स्मूथली हो गया। और सर अभी एक जयपुर ब्रांच में एक सेशन चल रहा था, डॉक्टर्स जो साइकेट्रिस्ट है वो ये बोल रहे थे कि कभी भी विपरीत परिस्थितियों में अपना धैर्य मत खो। और अभी 1 घंटे पहले सीखा सर, और उसको एम्प्लॉय भी कर दिया, और वो सच भी हो गई सर कि 10 मिनट के अंदर अपना धैर्य नहीं खोया और चीजें बिल्कुल सब स्मूथली हो गई। रेस्पेक्टेड सीए देवेंद्र सोमानी जी, चेयरमैन CIRC, रेस्पेक्टेड सीए मुकुल जी, वाइस चेयरमैन पटना ब्रांच, रेस्पेक्टेड प्रवीण कुमार जी, चेयरमैन पटना ब्रांच इन एब्सेंसिया, श्री रामशंकर जी, सेक्रेटरी पटना ब्रांच, ऑल द रेस्पेक्टेड कोलिग्स फ्रॉम CIRC ऑफ ICAI। आज के इस वेबिनार में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक भी है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑन स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। और मेरा तो यही मानना है कि जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है, अब तो स्टैंडर्ड ऑन लाइफ हो गया है कि यदि हमने स्टैंडर्ड फॉलो किए, चाहे वो ऑडिट में हो चाहे लाइफ के अंदर हो, तो ही हम अपने आप को बचा पाएंगे, तो ही हम अपने आप को चला पाएंगे। अपने आप को बचाने के लिए भी, अपने आप को चलाने के लिए भी
अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए भी, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए भी, मतलब किसी की चीज के लिए अब स्टैंडर्ड का होना कंपलसरी हो गया है। यदि हम स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, यदि हम इथिक्स को फॉलो करेंगे, तो ही हम मेंटेन रह पाएंगे और तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और चोपड़ा सर से बेटर इस चीज को और कोई हमको अंडरस्टैंड करा ही नहीं सकता। इसीलिए सर इसका टॉपिक का नाम भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट रखा हमने, ताकि इसका एंड और स्टार्टिंग का कोई कुछ हो नहीं, सब कुछ आ गया इसके अंदर। यही सर आज हमको समझाएंगे और मेरे हिसाब से भी हिंदुस्तान में इनसे बड़े को समझाने वाला पर्टिकुलरली इस टॉपिक के ऊपर और कोई नहीं है। तो आज हम जो सर की गाइडेंस से अपने आप को गौरवान्वित, अपने आप को लाभान्वित करेंगे और हम कंटिन्यू उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे कि कोरोना काल के अंदर भी हमने यही सीखा है और यही सिखाया जा रहा है कि कोरोना के अंदर जितना आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे उतना इससे आप बचे रहेंगे, जितना इससे आप बचे रहेंगे उतनी आपकी फैमिली बची रहेगी, जितनी आपकी फैमिली बची रहेगी उतना आपका समाज, जितना समाज बचा रहेगा उतना ही आपका देश बचा रहेगा। और यही शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस टाइम पर कोरोना जहां जहां भी कहर ढा रहा है, कहर वहीं पर ढा रहा है जहां पर स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे। जहां पर हम बेकाबू हो रहे हैं, कोरोना वहीं बेकाबू हो रहा है। जहां पर हम काबू में है, वहां पर भी कोरोना वहां पर भी काबू में है। तो अपने आप को काबू में रखें। और ये जो कोरोना काल है, शायद ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे लेके आया है कि सर आज कनाडा में और जो लोग जहां से भी बैठे हुए वहां ज्वाइन कर पा रहे हैं और इस आपदा में अवसर देखें, और अवसर हमको मिल रहा है, नो डाउट। घर बैठ के भी हम शायद बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कनेक्टिविटी, बहुत सारी नेटवर्किंग जो कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाई थी। शायद मैं भी पटना 2 बार या 3 बार या 4 बार नहीं आ पाता, लेकिन इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू मेरा भी ये चौथी बार है कि मैं पटना पहुंच गया हूँ और अपने आप को पटना के अंदर फील कर रहा हूँ। इवन एक प्रोग्राम अभी गया में भी हो चुका है, गया की जो पवित्र भूमि है, मैं भी उसका मतलब उसका दर्शन करके अपने आप को गौरवान्वित मैंने अपने आप को फील किया। तो बस आप सबसे यही निवेदन है कि इस कोरोना काल के अंदर, ऑडिट के अंदर भी, अपने लाइफ के अंदर भी आप स्टैंडर्ड फॉलो करिए। 100% हमारी जीत होगी, हम इस कोरोना से बाहर निकलेंगे। जय हिंद, जय आईसीआई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अब मैं बताना चाहूंगा कि हमारे चेयरमैन श्री परवीन सिंह सर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा परवीन सर को कि कुछ शब्द बोलें और वेलकम करें हमारे चेयरमैन फैकल्टी को, हमारे रिस्पेक्टेड फैकल्टी। प्रवीण जी आप अनम्यूट हैं क्या? सर प्लीज हैंड रेज करिए ना 1 सेकंड के लिए। प्रवीण जी प्लीज हैंड रेज करिए ना। प्रवीण सिंह सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। प्रवीण जी हैं क्या? प्रवीण जी हैंड रेज करिए ना एक बार। नहीं सर है, मैंने देखा है। यस 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 सर प्लीज अनम्यूट। हाँ प्रवीण जी अनम्यूट। यस सर प्लीज। सर फिर आपने म्यूट कर दिया। सर अनम्यूट करिए। हेलो, हाँ सर। यस थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी फॉर बीइंग लेट। जब अमरजीत सर का प्रोग्राम हो और मैं ना, ऐसा हो नहीं सकता है। मुझे बहुत इच्छा थी, काफी दिन प्रोग्राम किया हुआ था। आई वेलकम अमरजीत सर फॉर स्पेयरिंग टाइम। वो बाहर से मैं जुड़े हुए हमारे साथ सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू वेलकम all the our respected past president of the ICAI, our faculty of the day, Amarjit Chopra sir, in this webinar. And thank you sir for accepting our request and being the faculty for this. We would not have been a better faculty than you on this topic sir. Thank you sir for sparing time out of busy schedule. I would like to welcome our very own Sri Anuj Goyal sir, Central Council member and ex officio of Patna branch. I'd like to welcome our chairman CIRC Devendra Somani ji. I'd like to welcome our secretary CIRC Dinesh sir. Welcome sir. Secretary sir का बहुत स्वागत है. And I'd like to welcome all the past chairman of Patna branch who are present with us in this on this platform. I'd like to welcome all the guests, all the members who are joining this to our webinar on this topic. Welcome you all in this topic. Sir, this is a very important topic and ICAI का ये भी एक नॉर्म भी था कि इस टॉपिक पे एक हर ब्रांच को वेबिनार कराना है। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने टॉपिक सेलेक्ट भी किया था और सबसे अच्छे स्पीकर हमारे साथ हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। Sir, with this I again welcome all of you in this webinar and I hope कि आपके सहयोग से ये वेबिनार बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। Thank you sir. Over to our secretary Patna branch.
Thank you, sir. Thanks for your welcome speech, sir. Now I'd like to request our CIRC Chairman, CA Shri Devendra Somani, sir, to please share some few words. Devendra Somani, sir, over to you. Thank you, Ram Shankar ji. Respected Amarjit Chopra sir, Honorable past President of the ICI, my elder brother CA Anuj Goyal sir, Central Council member, my regional council colleague, Secretary CIRC, Dinesh Jain sir, Chairman of the Patna branch, CA Parvinder ji, Vice Chairman CA Mukul ji, Secretary Ram Shankar ji, Sunil Kumar ji, Ranjit Kumar ji, CA ji from Jamshedpur, and so many past presidents of the Patna branch, senior members, and all other viewers of this webinar. Good, Amarjit Chopra sir, and rest of all, good evening. It is a very great opportunity for all of us that we have with us Honorable past President Amarjit Chopra ji on this very hot topic, that is practical aspects on standard on auditing. Friends, हमारे जो signature हैं उसकी जो value है वो इसी वजह से है because we are following this standard on auditing. अगर हम standard फॉलो कर रहे हैं और अगर हम उसको फॉलो करके अगर हम काम करेंगे और उसका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की जो फर्म्स हैं वो पूरा काम करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं, सारी चीजें देख के भाल के ऑडिट करते हैं, बट उनका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है थोड़ा सा कमजोर होता है कई बार। तो जब भी कोई केस आगे डिसिप्लिनरी में जाता है या कुछ और हमें दिक्कत होती है तो हम इस पोजीशन में नहीं होते हैं कि हम उसको एक्सप्लेन कर सकें कि हमने सब कुछ ठीक ठाक चेक किया है, सारी चीजें सब कुछ अपडेट है। तो आज हमारे साथ चोपड़ा सर हैं और वो उनका यूं बोल सकते हैं नाम ही काफी है, तो उससे आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पे हम चोपड़ा सर को सुन रहे हैं। तो बहुत ज्यादा इसलिए मैं इस मैटर पे नहीं बोलूंगा क्योंकि चोपड़ा सर को हम सब सुनेंगे। और दूसरे दो चीजें मैं एज ए चेयरमैन आपको जरूर बताना चाहूंगा कि हम लोगों का पिछले कुछ समय से आपकी 2-3 प्रोग्राम का मुझे इनविटेशन था, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजन आई एम नॉट एबल टू अटेंड, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। एंड सेकंड, हमारी जो ड्यू डेट है मेंबरशिप फीस की, तो पिछले 6 महीने में कम से कम मेरे पास 10 से 15 केसेस ऐसे आए हैं जिनमें मेंबर्स की जो है 15 साल 20 साल पुरानी सीनियरिटी होते हुए भी क्योंकि लैक ऑफ ये माइंड से स्लिप हो गया या जिस भी रीजन रहा हो, पहले हम अप्रैल मई में सोचते हैं ठीक है सितंबर लास्ट डेट है कर देंगे कभी भी, और सितंबर में किसी और कारण से हम फीस पे करना भूल जाते हैं, तो बाद में हमारा वो नेम रिमूवल हो जाता है। और उसमें भी अगर 31 मार्च का डेट निकल जाता है तो देन हम अगर 2001 से प्रैक्टिस में है या 1970 से प्रैक्टिस में है, वो सारी सीनियरिटी भी हमारी लूज हो जाती है। तो इसीलिए हमने हमारे ऑफिस में हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट अतुल गुप्ता जी ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप एक बार जितने भी मेंबर जिनका फीस जमा नहीं हुआ है उनके लिए एक रिमाइंडर कॉल करवा दें। आप इसको बिल्कुल भी अदरवाइज ना लें। कुछ मेंबर्स की हमें शिकायत मिली कि उनको बड़ा इसमें फील हुआ। हमारा कहीं ये तात्पर्य नहीं है कि हम आपकी कोई लोन की रिकवरी कर रहे हैं या हम इस तरह से आपसे कोई ऑफिसर आपसे बात कर रहा है। ये सिंपल एक जेंटल रिमाइंडर कॉल है और आप ही के हित में हमने किया गया है। इसको किसी तरह का जो है और इसमें हमारा कोई आशय नहीं है। हमें उल्टा हमारे स्टाफ को एंगेज करके और आपके लिए हमें लगाना पड़ा है। सेकंड थिंग जो है, तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपना मेंबरशिप फीस टाइमली पे कर दें। ये आप ही के इंटरेस्ट में है। और कोई दूसरा एक और इशू जो आ रहा था कि कोविड में साहब इंस्टीट्यूट फीस कलेक्शन में लगा हुआ है। आई डोंट थिंक कि जो हमारा मेंबरशिप फीस है वो इतना है कि इतना ज्यादा नहीं है कि आप कोविड में इसको कोविड से लिंक करें। कई जनों के एक आध मेंबर ने कहा है कि इसका EMI कर दें। तो ये सारी चीजें अच्छी और शोभा नहीं देती हमें।
कि हम 7,000 रुपए या 4,000 रुपए या 2,000 रुपए के लिए बोले EMI करें। आप अपनी सोच को बढ़ाएं, विजन को बढ़ाएं। और आज हमारे साथ जब चोपड़ा सर हैं, तो आप इंटरनेशनल लेवल पे सोचें, और जिस तरह से कोविड में अपॉर्चुनिटी मिली है, आप अपनी प्रैक्टिस को इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपांड करने की सोचें, तो विजन बड़ा रखें, तो आपका काम भी बड़ा होगा। 100-200 रुपए, 500 रुपए EMI और ऐसी छोटी छोटी बातें करके अपने आप की सोच को प्रदर्शित ना करें कि मैं इतना छोटा हूं। हम तो इवन अगर कोई आपको ये बोल देगा, अच्छा आप मेंबरशिप फीस देने की पोजीशन में नहीं है, तो क्या हम एक ट्रस्ट से बात करें कि वो आपके लिए मेंबरशिप फीस दें? तो सेकंड, तो इसमें बहुत ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। और मेरे ख्याल से सेकंड इश्यू जो एक और आया है कि हमारा MEF फॉर्म भी अपलोड हो चुका है, तो उसमें भी आप लास्ट मोमेंट तक वेट ना करके उसको तुरंत अपलोड करें। और उसमें किसी तरह की क्वेरी है तो आप अपना मेल PDC ICI को कर दें, और हमारे को कहीं अगर इन्वॉल्व होना हो या अगर आप हमारा कोऑर्डिनेशन की जरूरत हो तो आप CC में हमें भी कर सकते हैं। हम वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, एंड एवरी फ्राइडे आई एम अवेलेबल एट 11 AM to 1 PM। आप जब भी कोई इस तरह की कोई भी आपको इश्यू है CARC से रिलेटेड या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, वैसे हमारे पास तो अनुज गोयल सर हैं, उनका मोबाइल नंबर भी काफी है, तो अगर आपने उनको एक टेलीफोन कर दिया तो फिर मुझे नहीं लगता मेरी या हमारी किसी की भी जरूरत है। बट भी एज ए चेयरमैन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप अगर कोई मुझे बताएंगे तो मैं कोशिश करूंगा। मैं भी अनुज भाई साहब के थ्रू ही काम करूंगा, मुझे भी उनको करना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच। विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, आई hand over the mic to our honorable secretary Ram Shankar ji. Thank you. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Now I'd like to request our guest of honor, CIRC member and ex officio of Patna branch, Shri Anuj Goyal sir, to say some few words on today's program. Anuj Goyal sir. Thank you, Ram Shankar ji. We are eagerly waiting to hear President Amarjit Chopra ji. Amarjit Chopra ji is the president. Once a president is always a president. That is the protocol, and he is my president. So we are really indebted. Our whole of the profession is really indebted to Chopra sir. The way he has devoted his entire life for the cause of the profession, for the cause of the members, for the cause of the students, it is something really great. And he do speak from heart. किसी को अच्छा लगे उनका आइडियोलॉजी है, किसी को अच्छा लगे तो अच्छी बात है, किसी को बुरा लगे तो और अच्छी बात है। अगर वो चीज देश के लिए अच्छी है तो बोलेंगे, अगर वो चीज प्रोफेशन के लिए अच्छी है तो बोलेंगे, अगर वो चीज मेंबर्स और स्टूडेंट्स के लॉन्ग टर्म के लिए अगर अच्छी है तो ही विल स्पीक फ्रॉम हिज हार्ट। सो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इज सो इम्पोर्टेंट दैट एट टाइम्स we always focus on accounting standards or Ind AS or IFRS, but we are very well aware that accounting standards or Ind AS or IFRS, all these standards are practically for the use of the auditee. We have to see that whether auditee has followed the IFRS or Ind AS or accounting standards, as the case may be, in a desired manner. But standards on auditing are applicable to the auditor, and I think it is very important, whether it is tax audit, whether it is company audit, whether it is bank audit. And Chopra ji is the best resource person to let us know that how we chartered accountants have to concentrate on standards on auditing. It is very important. It is far more important than having a knowledge of the accounting standards for an auditor. And I am quite confident when we are having Devendra Somani ji, our honorable chairman of Central Region, Dinesh Jain ji, secretary CIRC, Pravindra ji, chairman Patna branch, Mukul ji, vice chairman, Amit Bhattacharya ji, past chairman of the branch, Ram Shankar ji, secretary of the branch, and I think lot number of seniors, SP Sinha ji, and Rungta ji, and others, GP Agarwal ji are present here, and they will certainly vouch that the standards on auditing is most important for the chartered accountants who are doing the attest function. So if we are doing the attest function, one of the most important thing is to have the expert knowledge of SA, standards on auditing. So without taking your further time, as we are very eager to hear our honorable resource person, our president Amarjit Chopra sir. I will not like to come between Amarjit Chopra sir and all the
viewers, I once again welcome our President Amarjit Chopra sir on behalf of the Institute of Chartered Accountants of India, on behalf of Central Region, on behalf of Patna branch, and on behalf of all the viewers. Thank you very much. A very big round of applause to Amarjit Chopra sir. Thank you, sir. Thanks a lot. Now I would hand over the control to our program moderator cum session chairman, C. Dinesh Kumar Jain sir, to please start the session. Thank you very much, sir. Sir, now I request to Sri Amarjit Chopra sir. और सबसे रिक्वेस्ट है पार्टिसिपेंट से, वी विल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर सेशन है 6:30. यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन राइट इन चैट बॉक्स और यू कैन रेज योर हैंड. वी विल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर सेशन 6:30. सर. सर आपकी वॉइस दिनेश जी. यस सर, आ रही है. ओके सर. अरे my very let me start again. Thanks Dinesh ji, thanks Praveen ji, Mukul ji, Anuj ji in particular, basically because the moment he rings up there is no point. मतलब कि आप मना कर नहीं सकते हो किसी भी सूरत में. एक बार अनुज जी ने मना कर दिया तो फिर उस अनुज जी ने कह दिया तो उसके बाद मना करने की कोई गुंजाइश नहीं है. देवेंद्र सोमानी जी, the chairman of the CIRC, and many friends who have joined, I think participants. सर वापस वॉइस गई सर, वापस वॉइस जा रही है सर. शायद सर लॉग आउट हो गए. वेट करते हैं, वापस ज्वाइन कर रहे होंगे. रामशंकर जी. हाँ सर, लगता है लॉग आउट हो गए हैं. ज्वाइन करेंगे सर. एक सेकंड, हाँ वापस ज्वाइन कर रहे होंगे. सतीश जी देखिएगा सर, लॉग इन करेंगे, इनको एक्सेप्ट करिएगा. हाँ प्लीज वेट. यस, आगे सर, आगे वापस. सर प्लीज अनम्यूट. मेरे ख्याल में कनेक्टिविटी इशू था. यस सर. नाउ इट इज ओके. It has been resolved. Yes. It has been resolved now. यस सर. तो करीबन 140 के करीब लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त, which I think स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जैसे टॉपिक के लिए बड़ी अच्छी गैदरिंग है. Yes. मैंने हमेशा एक बात कही है कि हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे बात करवाएं और जीएसटी पे बात करवाएं तो वाह है, फिर तो कोई बात ही नहीं है. डायरेक्ट टैक्स पे बात करवाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है. और अगर कैपिटल मार्केट बूम कर रही हो तो कैपिटल मार्केट पे बात करवा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत सिर्फ होती है जिस दिन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे बात करनी होती है, और उससे भी ज्यादा बड़ी दिक्कत होती है जिस दिन मुझे कोड ऑफ एथिक्स पे बात करनी होती है. परंतु अगर किसी भी ब्रांच में 140 लोग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग सुनने के लिए जुड़े हों, ये भी हो सकता है कि वीडियो करके बैठे हों, वो भी कोई समस्या नहीं है. परंतु अगर जुड़े हुए हैं तो भी अपने आप में काफी बड़ी बात है. हालांकि दिनेश जी और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अनुज जी हैं, मेरा मानना है कि आपने जो फैकल्टी चुनी उसको राइट नहीं है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे बोलने का. उसका कारण बता देता हूँ. मैंने तो 1975 में क्वालिफाई किया एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और 1975 में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ने नहीं पड़ते थे, क्योंकि ना तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे उस वक्त और ना ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स थे. मजेदारी की बात यह है कि ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जिसपे मैं बहुत बोलता हूँ, और दोनों टॉपिक्स ऐसे हैं जिसपे बोलने का मेरा कोई औचित्य नहीं, मेरा कोई राइट नहीं है. क्योंकि जब हमने क्वालिफाई किया उस वक्त तो ये दोनों बोर्ड ही नहीं थे, ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड था ना ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड था. हम तो वो कहते हैं ना, भला वक्त था, भले वक्त में
मतलब कि वो छोटी छोटी किताबें पढ़ के पास हो गए इंस्टीट्यूट की। आज की जो जनरेशन है, अगर आप उनकी तकलीफ समझें तो उनकी तकलीफ तो इतनी जबरदस्त है कि आप 39-40 तो आपको इंडेक्स पढ़ने पड़ रहे हैं, 27 आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने पड़ रहे हैं, 46-47 आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ने पड़ रहे हैं। उसके अलावा स्टेटमेंट्स हैं, गाइडेंस नोट्स हैं, सब कुछ है। इंस्टीट्यूट ने ये सब कुछ कर लिया पर बच्चे पास हो जाते हैं, ये बड़ी मजेदारी की बात। तो मेरी तो सल्यूट है टू द प्रेजेंट जनरेशन जो ये सब पढ़ने के बावजूद भी पास हो जाती है, इफ यू आस्क मी। परंतु आपने दिनेश जी एक बहुत बढ़िया बात कही शुरू में, एंड दैट इज व्हाट आई विल लाइक टू रिपीट हियर बेसिकली। दैट इज व्हाट आई विल लाइक टू से हियर। आपने बात की थी कि भाई स्टैंडर्ड्स की, कि स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, जहां पे भी फॉलो करते हैं जिंदगी में वहां पे हम सुखी रहते हैं। देखिए कोरोना के अंदर जिस दिन मोदी जी ने पहली स्पीच दी थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उस दिन उन्होंने कुछ रूल्स बताए थे कोरोना से बचने के। जो वो रूल्स को फॉलो करता रहा, मोर और लेस वो उससे बचता रहा, उसके डेडली इफेक्ट से तो बचता रहा। अगर कहीं काबू में आ भी गया परंतु डेडली इफेक्ट नहीं आया उसको। अगर आपने मास्क पहनने का कार्यक्रम जारी रखा है, वो भी एक पार्ट था स्टैंडर्ड का। अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग जारी रखी है, वो भी एक पार्ट था। मैं आपको ये बता सकता हूँ, मैं कनाडा में हूँ, अगर इस वक्त आप यहाँ पे किसी दुकान में चले जाएं, कोई दुकान के एंट्री से पहले आपको सैनिटाइजर यूज करना ही करना है, वहां पे पड़ा हुआ है। और कोई व्यक्ति दुकान के अंदर बिना मास्क के आपको मिलेगा नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। मतलब कि ये एक डिसिप्लिन है, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन है। और शायद ये भी एक कारण है, हालांकि यहाँ की आबो हवा भी ठीक है, पोल्यूशन नहीं है, इंडस्ट्री ज्यादा नहीं है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। पॉपुलेशन सारी कंट्री की 3.7 करोड़ है, एरिया हमसे कहीं ज्यादा है। तो नेचुरली एक हमारी जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो है 484 आदमी पर किलोमीटर। मतलब कि हर 2 मीटर के ऊपर एक आदमी लेटा हुआ है, कहीं ना कहीं बैठा है। और ऑस्ट्रेलिया की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है 3.3 पर्सन्स पर किलोमीटर, और कनाडा की भी उसके आसपास ही होगी, कहीं ना कहीं पर उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, 5 होगी। तो जब ये सब चीजें होती हैं तो आफ्टर ऑल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग मेरी ढाल है, मेरा कवच है। अगर मैं वो फॉलो करता हूँ और उसके फॉलो करने में कहीं गलती हो भी जाती है तो भी मैं डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने जाके ये कह सकता हूँ कि आपके ये स्टैंडर्ड्स मैंने फॉलो किए थे, उसके बावजूद कोई अनइंटेंशनल एरर हो गया, मैंने कहीं पे कोई गफलत नहीं की है, तो शायद पनिशमेंट बहुत लीनियंट हो सकती है। परंतु अगर आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो नहीं करते हैं तो बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो कोरोना के दौरान आप मास्क नहीं पहन रहे हैं, जो आपने कवच नहीं पहना उसका बेसिकली। तो जैसे मास्क कवच है आपके कोरोना से बचने के लिए, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है आपके डिसिप्लिन मैकेनिज्म से बचने के लिए, ये आपको बता सकता हूँ। और अगर आप वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करते हैं, अब आप ये कहते हैं कि साहब इसमें तो पंगा ही बहुत है, इसमें तो मतलब कि हर बात पे तो ये कहा गया कि ये भी करिए, तो करना तो पड़ेगा। फिर आप ये कहते हैं कि हमें फीस नहीं मिलती, फीस तो आप ही को लेनी पड़ेगी। अगर आपको ये लगे कि क्लाइंट मेरे ऑफिस में घुस गया उसके बाद बाहर नहीं निकले किसी भी तरीके से, लेकिन दूसरे दरवाजे पे ना चला जाए, तो फिर तो फीस फिक्स नहीं हो सकती, ये तो आप मान के चलिएगा। इंस्टीट्यूट कितना भी जोर लगा ले, इंस्टीट्यूट फीस कभी भी फिक्स नहीं कर पाएगी आपको। अगर आज इंस्टीट्यूट फिक्स कर देना कि 10,000 रुपये से कम आपने फीस नहीं लेनी टैक्स ऑडिट में, तो लोग शायद फीस तो 2,500 ले रहे होंगे, चेक 7,500 का लेके उसको 7,500 रुपया चेक वापस कर रहे होंगे, ये भी बता सकता हूँ आपको। तो वो तो अपनी एक फितरत की बात है। तो मेरा अपना मानना है कि अगर इंस्टीट्यूट से आप ये चाहें कि इंस्टीट्यूट फीस भी आपकी फिक्स करें,
भाई किसी क्लाइंट के यहाँ पे 1 करोड़ की टर्नओवर में 10 वाउचर हैं और दूसरी जगह 1 करोड़ की टर्नओवर में 1000 वाउचर हैं, तो फीस कैसे फिक्स हो सकती है? फीस नहीं फिक्स हो सकती किसी भी। फीस तो आपका इंटरनल मामला। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर आपसे 2000 रुपया फीस मांगता, कोई डॉक्टर आपसे 500 रुपया फीस मांगता। ऐसे भी वकील बैठे हैं जो आपके घर पे आके नोटराइज कर जाते हैं, और ऐसे भी वकील बैठे हैं जिनको जो अपनी फीस लेते हैं। आफ्टर ऑल हमारी ही कंट्री में नानी पालकी वाला भी हुआ, सौरभ जी भी हुए, सभी हुए। तो मेरा अपना मानना ये है कि अगर आप वाकई में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करेंगे तो शायद आप कहीं पे बचे रहेंगे। आपका ये कवच के रूप में काम करेगा। अगर आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को तिलांजलि दे देंगे, आप नहीं फॉलो करेंगे, तो आप अपने ऊपर उतना ज्यादा रिस्क लेके चल रहे हैं। ये तो बिल्कुल आप मान के तयशुदा मानिएगा, इसमें किसी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं है। कोरोना के कई फायदे हुए। सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि इसने आपस में लोगों को जोड़ दिया जहां पे हम शायद सालों से नहीं पहुंच रहे थे, एजिस से नहीं पहुंच रहे थे, वहां पे हम इस वर्चुअल मीटिंग्स के माध्यम से पहुंच गए हैं। आज यहाँ से बैठ के अगर आपसे रूबरू हो रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में ये भी कोरोना का फायदा। तो एवरी एडवर्सिटी हैज गॉट एन अपॉर्चुनिटी। तो ये जिंदगी में हमेशा मान के चलिएगा कि हर एडवर्सिटी के अंदर एक अपॉर्चुनिटी है, और उस अपॉर्चुनिटी को सीज करना, उसको ग्रैब करना, वो हमारी उसमें एबिलिटी में आना चाहिए कहीं ना कहीं पे। कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, मैं आपसे कुछ ही स्टैंडर्ड्स की बात करूंगा। सब स्टैंडर्ड तो कवर हो नहीं सकते किसी भी सूरत में, पर जो स्टैंडर्ड आपसे बात करूंगा वो स्टैंडर्ड वो होंगे जो कि आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपको इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमने जो कुछ सीखा, डिसिप्लिन कमेटी में बैठ के सीखा, कुछ अपने प्रैक्टिकल जब ऑडिट किए तब सीखा, कहाँ कहाँ पे लोग गलतियां करते हैं वहां पे सीखा, कहाँ कहाँ पे हमने गलती की हमने सीखा। ये तो एक सीखने का वो है, बेसिकली एक लगन भी होनी चाहिए और सीखने की के लिए आदमी मगन भी होना चाहिए, दोनों चीजें। एक स्टैंडर्ड है बड़ा कॉमन सा 505 ऐसे 505 जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशंस। और उससे पहले मैं एक बात बता दूं, हम जितने भी लोग टैक्स ऑडिट कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली जहां पे हम टैक्स ऑडिट कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म्स का, प्रोप्राइटर्स का, जहां पे मैं 3CB यूज कर रहा हूं, मैं खास तौर पे उस बात की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, वहां तो आप ऑडिट कर ही रहे हैं, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, वहां पे तो ये स्टैंडर्ड्स वैसे ही लागू होने। परंतु जहां पे आप टैक्स ऑडिट कर रहे हैं या किसी और तरीके का ऑडिट कर रहे हैं, और जहां पे 3CB यूज कर रहे हैं, जहां पे आप ट्रू एंड फेयर व्यू की बात कर रहे हैं, वहां पर भी ये सब के सब स्टैंडर्ड्स आप पे लागू हैं, ये ध्यान करिएगा। आज मैं अगर सबसे पहली बात तो ये है कि अगर अपने आप से पूछे, एक छोटी सी बात अगर जहन में लाएं, कितने लोगों के पास अपॉइंटमेंट लेटर भी है टैक्स ऑडिट के? बिना अपॉइंटमेंट लेटर के तो हम काम शुरू करते हैं, और जब बिना अपॉइंटमेंट लेटर के काम शुरू करते हैं तो एंगेजमेंट लेटर होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और जबकि मेरा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जो है वो बड़ा क्लियर है, और वो ये कहता है कि आपके पास एंगेजमेंट लेटर होना चाहिए। एंगेजमेंट लेटर क्या है कि जो कंपनी आपको या जो व्यक्ति आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे, उसके इवज में आप उसको एक एंगेजमेंट लेटर दें, और एंगेजमेंट लेटर में ये लिखें कि भैया तुम्हारी ये जिम्मेवारी होंगी, मेरी ये जिम्मेवारी होगी, और वो उससे साइन करवा ले। तो ये किसका कवच है? एक बात बताइए मुझे, ये किसको किसकी ढाल बनेगा कल? मेरी तो नहीं बनेगा, उसी की बनेगा जो ऑडिट कर रहा होगा। तो जब एंगेजमेंट लेटर आपने लिया ही नहीं और दिया ही नहीं, मतलब कि अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास है नहीं, एंगेजमेंट लेटर आपने दिया नहीं, साइन उससे करवाया नहीं, तो आपने ये डिफाइन कैसे किया कि उसकी जिम्मेवारी क्या थी और आपकी जिम्मेवारी क्या थी?
और एंगेजमेंट लेटर में ही आपकी फीस भी लिखी रहती है, एंगेजमेंट लेटर में ही आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉजेस भी लिखी रहती हैं, एंगेजमेंट लेटर में ही ये भी लिखा रहता है कि उसको क्या क्या आपको प्रोवाइड करके देना और आपने क्या क्या काम करना है। अब मुश्किल ये है कि हम फिर वही बात करेंगे कि साहब इतनी फीस में एंगेजमेंट लेटर भी दें, तो भैया जो लिखा है इंस्टीट्यूट ने वो तो करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं मिलेगा डिसिप्लिनरी के टाइम में तो डेफिनेटली आपके ऊपर डिसिप्लिनरी केस बनेगा। ये तो आपको मैं बता के चल सकता हूँ, क्योंकि जब आप सामने पेश होते हैं ना डिसिप्लिनरी कमेटी के, तो उस वक्त आप ये कहते हैं कि ये तो मेरी करने की वही नहीं थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो हम फिर पूछते हैं भैया एंगेजमेंट लेटर दिखा दो कि एंगेजमेंट लेटर में आपने क्या दिया था। वो एंगेजमेंट लेटर हमें कहीं पे मिलता नहीं, किसी के पास भी। वो जब मिलता नहीं तो क्लाइंट हावी होता है, वो कहता है नहीं जी ये काम तो इन्होंने करना था, और जब आपने नहीं किया होता तो फिर हमें मजबूरन होकर किसी मेंबर को डिसिप्लिनरी कमेटी में चार्ज करना पड़ता। मैंने बात शुरू की थी SA 505 की, जो बात करता है एक्सटर्नल कंफर्मेशंस की। सत्यम होता नहीं अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन ली होती, सत्यम किसी भी सूरत में होता नहीं अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन ली होगी। मैं आप सबसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जब कभी भी कोई व्यक्ति डेट राइट ऑफ करता है, तब तो हम फिर भी उसको किसी नजरिए से देखते हैं कि भाई इसने डेट बुक डेट जो थी वो राइट ऑफ की, एक रिसीवेबल था उसको राइट ऑफ कर दिया, उसकी हम जांच भी करना चाहते हैं, उसकी पड़ताल भी करना चाहते हैं। परंतु जब कोई व्यक्ति कोई लायबिलिटी को राइट बैक करता है, किसी क्रेडिटर को राइट बैक करता है, तो हम उसके बारे में कोई गौर ही नहीं करते किसी भी सूरत में। क्यों? कि भाई कौन सा ऐसा व्यक्ति है, सपोज कीजिए आपकी बैलेंस शीट हो 50 करोड़ की और उसमें क्रेडिटर खड़ा हो 3 करोड़ रुपए का, और वो क्रेडिटर में राइट बैक कर लूं, तो कौन सा ऐसा क्रेडिटर है जो आपको 3 करोड़ रुपया छोड़ देगा? कोई ऐसा क्रेडिटर आपका है नहीं जो आपको 3 करोड़ रुपया छोड़ देगा और आप उसको राइट बैक कर लेंगे। 3 करोड़ रुपए का राइट बैक होना या 2 करोड़ रुपए का राइट बैक होना, 1 करोड़ रुपए का राइट बैक होना, ये अपने आप में आपको एक आश्चर्य में डालने वाली बात है कि जिस सोसाइटी में एक भाई दूसरे भाई को 10,000 11,000 रुपए का शगन देने को तैयार नहीं, वहां पे कोई व्यक्ति आपसे बिना जान पहचान के 3 करोड़ रुपए आपको छोड़ दे और आप उसको राइट बैक कर लो। ये कैसे हो सकता है? तो जो चीज आपको आश्चर्यचकित कर सकती हो, जो व्यक्ति जो जिस चीज से आपको अचंभा हो सकता हो कि भाई आपको ये लगे कि मैं तो ये कभी नहीं करता, मैं क्यों किसी की लायबिलिटी छोड़ता, मैं क्यों छोड़ता किसी को पैसा। अब अगर मैंने किसी को माल सप्लाई किया हुआ है, किसी को सर्विस सप्लाई की हुई है, तो मैं उसको वो पैसा क्यों छोड़ता किसी भी सूरत में। और अगर वो मुझे नहीं छोड़ना था और वो मैंने छोड़ा है, तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। ये भी कारण हो सकता है कि पिछले सालों में जो मैंने खर्चा बुक किया वो बोगस बुक किया था, वो खर्चा ठीक ही नहीं था किसी भी सूरत में। इसीलिए एक्सटर्नल कंफर्मेशंस का लेना बहुत जरूरी है, चाहे वो पार्टी डेबिट की हो या वो पार्टी क्रेडिट की हो, चाहे वो इवन स्टाफ के भी अगर बड़े एडवांसेस हैं, डायरेक्टर से एडवांसेस हैं, डायरेक्टर्स को एडवांसेस हैं, जिनको भी एडवांसेस हैं, या आपने बैंक में डिपॉजिट्स करवा रखे हैं, हर चीज का आपको कंफर्मेशन लेना जरूरी था। अगर बैंकों से प्रॉपर कंफर्मेशन सत्यम के केस में हुई होती तो सत्यम का फ्रॉड होता नहीं, फिर राजू को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर ऑडिटर ही डिक्लेयर कर देता कि वो फ्रॉड है। और एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या कहता, ये स्टैंडर्ड क्या कहता, ये स्टैंडर्ड बड़ा क्लियरली ये कहता कि भाई जिस व्यक्ति का भी जो बैलेंस है, डेबिट है या क्रेडिट है, उसको पार्टी चिट्ठी लिखेगी, और पार्टी चिट्ठी ये लिखेगी कि आपका एड्रेस दे देगी, चाहे ईमेल आईडी दे देगी, और उसमें ये लिख देगी कि मेरे ये ऑडिटर्स हैं, इनको आप डायरेक्टली अपना बैलेंस हमारे साथ जो है आपका है उसको कंफर्म कर दीजिए। ये एक प्रोसेस दिया गया, ये प्रोसेस है कि ये प्रोसेस फॉलो करना है कि आपको आपका क्लाइंट उन सब पार्टीज के एड्रेसेस पे चिट्ठी लिखे, उन पार्टी के एड्रेसेस पे मेल ले कि भाई ये मेरे
हैं, इनको आप बैलेंसेस कंफर्म कर दें। अगर ये फॉलो नहीं हुआ तो SF5 फॉलो नहीं हुआ, SF505 फॉलो नहीं हुआ, ये ध्यान करिएगा। SF505 फॉलो हुआ, उसमें से कंफर्मेशंस कितने लोगों की आई, कितने लोगों की नहीं आई, दैट डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, उस पे मैं बाद में चर्चा करता हूँ। परंतु आपने कहीं पे प्रोसेस ही फॉलो नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि SF505 फॉलो नहीं किया। और SF505 फॉलो आज की डेट में कंपनीज एक्ट के तहत 143 और 143(10) पढ़े, उसमें तो बिल्कुल क्लियर है दैट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग मैंडेटरी टू बी फॉलोड। और अगर आपने कहीं पे कोई स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो नहीं किया है, then you are supposed to put it in your report कि why that particular standard has not been followed by you. तो जब यहाँ तक एक बात है कि कंपनीज ऑडिट के अंदर आपको ये कहा गया है कि भाई आपने एक फॉलो करना, किसी भी स्टैंडर्ड को फॉलो करना, और वो स्टैंडर्ड अगर आपने फॉलो नहीं तो आपको ये डिस्क्लोज करना है कि आपने ये स्टैंडर्ड फॉलो क्यों नहीं किया, किन सर्कमस्टांस किया। और अगर आप वो नहीं करते हैं तो उस केस में नेचुरली यू आर लायबल फॉर अ डिसिप्लिनरी एक्शन, अगर कल कोई 19 बात होती है। हमारी दिक्कत क्या है कि किसी को चिट्ठी लिखवाते ही नहीं। आपको चिट्ठी लिखवाने में क्या दिक्कत है? चिट्ठी तो लिखवाइए किसी व्यक्ति को जो उसका आपका प्रोसेस टेस्टिंग क्या है। आपका प्रोसेस टेस्टिंग ये है कि उन्होंने कितने लोगों को, सब भाई जितने आपके A क्लास पार्टीज हैं कम से कम, उन सब A क्लास पार्टीज और B क्लास पार्टीज को चाहिए। जो पार्टीज 70% 80% कवर करती हो आपके टोटल स्टैंडिंग का, उनको सबको चिट्ठियां लिखवाइए और उनकी कंफर्मेशन आपके पास आनी चाहिए। अगर एक भी कंफर्मेशन नहीं आती तो ये कौन सी पार्टी है? अगर आप ये कहें कि साहब मेरा तो क्लाइंट छोटा क्लाइंट है, तो छोटे क्लाइंट अगर 5 टर्नओवर वाला है तो 5 करोड़ की में जिसके 10 लाख की या 20 लाख की आउटस्टैंडिंग है वो भी इम्पोर्टेंट है। और अगर 50 करोड़ की टर्नओवर वाला है तो शायद 1 करोड़ वाला इम्पोर्टेंट है या 50 लाख वाला इम्पोर्टेंट है। अगर किसी की टर्नओवर ही 1 करोड़ की है तो उसमें हो सकता है कि 1 करोड़ की टर्नओवर वाले में 2 लाख वाला भी इम्पोर्टेंट हो। तो जो आपको A क्लास और B क्लास के लगते हैं, जो कंस्टिट्यूट होते हैं मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द पार्टी बैलेंसेस, कम से कम तो कंफर्म करवाइए। आप उनको कंफर्म ही नहीं करवा रहे, और जब तक आप कंफर्म नहीं करवाएंगे आप इस बात पे कैसे पहुंचेंगे कि जो उन पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो जेन्युइन थी या इनजेन्युइन थी। अब आपको मैं बता सकता हूँ पिछले दिनों में कई केसेस CBI से, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से इंस्टीट्यूट में कमेटी के सामने आए और उनमें यह कहा गया कि भाई ये कंपनीज जो थी, शेल कंपनीज थी, इनमें टर्नओवर नहीं थी और इनमें टर्नओवर ऐसे ही दिखाई गई। और जब उन पार्टीज से पूछा गया तो ये देखा गया कि कोई भी बैंक में तो कहीं से पैसा आया ही नहीं है, बैंक में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, परंतु सेल हो गई, परचेज हो गई, बैंक में कहीं पे भी कोई पैसा नहीं आया। और जब बैंक में कोई पैसा नहीं आया तो अभी आपने पार्टी से कंफर्म करवाया जिन पार्टीज को सेल या परचेज हुई, तो पता लगा कि किसी ना पार्टी से कंफर्मेशन हुई ना टर्नओवर हो गई 50-50 करोड़ की, 100 करोड़ रुपए की। और किसी भी पार्टी जिसको सेल हुई या परचेज हुई, जिन एक भी पार्टी से कंफर्मेशन और रिकॉर्ड नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे? डिसिप्लिन मैकेनिज्म से आप बच नहीं सकते। और ये आपको बता सकता हूँ कि पिछले सालों में a very large number of cases are coming from the enforcement directorate, CBI, to handle that situation. So मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन वाला स्टैंडर्ड है इसको फॉलो करने की कोशिश करें। उस स्टैंडर्ड के अंदर ये लिखा है कि आपने चिट्ठी भेजी और चिट्ठी नहीं आई वापस, उसमें आप ऑल्टरनेट प्रोसीजर लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑल्टरनेट प्रोसीजर लगाएं। ऑल्टरनेट प्रोसीजर ये है कि आपको अगर कोई बड़ी पार्टी का नाम नजर आता है कि जिससे सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, आज की डेट में तो गूगल पे जाके भी आप ये देख लेते हैं कि ये पार्टी एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती है। फिर आप उस पार्टी के लेजर अकाउंट में उठा के ट्रांजैक्शन देखनी शुरू करें। अगर पार्टी के 561 नंबर बिल पेड है, 562 नंबर बिल पेड है, 560 पेड है, 564 पेड है, तो 563 पेड क्यों नहीं है? अगर 563 पेड नहीं है तो इसका मतलब ये है
कि या तो उससे मुझे मैं जो माल आया नहीं, अगर आया था तो क्वालिटी में डिफेक्ट था, इसलिए मैंने उसको पेमेंट नहीं की। सिमिलरली जिसको मैं सेल करता हूँ, अगर उसमें भी कुछ बीच के बिल पेंडिंग है और आगे और पीछे के बिल मेरे को पेमेंट हो रही है, तो वो भी मुझे देखना पड़ेगा कि किस तरीके से मुझे पेमेंट हुई। और अगर मुझे पेमेंट उसकी बीच वाले बिल्स की नहीं आ रही, तो मुझे उनकी फाइल्स देखनी पड़ेंगी कि भी इनकी पेमेंट्स क्यों नहीं आ रही हैं, जबकि आगे और पीछे के बिल्स की पेमेंट्स आ रही हैं। क्या इनसे कोई क्वालिटी डिस्प्यूट है? अगर क्वालिटी डिस्प्यूट है तो जो भी डेबिट नोट लेना पार्टी से लेके उसको खत्म करो, हम उसको क्रेडिट दें और हम उस इशू को खत्म करें। मुश्किल ये है कि मैं SA 505 को फॉलो ही नहीं कर रहा किसी भी सूरत में। SA 505 को अगर मैं फॉलो नहीं करता हूं तो मुझे ये पता ही नहीं लगता कि उस पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं या नहीं हो रही। ये जरूरी है कि उस पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इस बात को देखा जाए। वो ट्रांजैक्शंस पता कैसे लगेंगी कि हुई है या नहीं हुई, जब तक पार्टी से आप कंफर्मेशन नहीं लेंगे बैलेंसेस की। और कंफर्मेशन आपके पास डायरेक्ट आनी चाहिए, कंफर्मेशन पार्टी के पास नहीं आनी चाहिए। अगर पार्टी के पास आके पार्टी अपने ड्रॉर में से निकाल के देती, तो राजू ने भी वही किया था सत्यम के केस में, कि सारे के सारी बैंक की कंफर्मेशन राजू साहब के ड्रॉर में थी और राजू साहब ने अपने ड्रॉर से निकाल के दे दी थी ऑडिटर्स को। कंफर्मेशन आनी चाहिए सीधी की सीधी, फ्रॉम द बैंक्स टू द फ्रॉम द पार्टीज टू द ऑडिटर्स। तो इस बात को जरा मद्देनजर रखिएगा। और हम ये कहें, और कम से कम अगर आपको ये लगता है कि कोई भी पार्टी ट्रांजैक्शन कंफर्म करने को तैयार नहीं, तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बड़ा डाउट आपको किसी भी अकाउंट के ऊपर होना नहीं। ये सबसे बड़ा डाउट का विषय है कि आपके पास 100 पार्टीज हैं, 100 पार्टीज को आप चिट्ठी लिखते हैं, एक भी पार्टी आपको कंफर्म करके नहीं देती। पार्टी की अपनी इंटर कंपनी बैलेंसेस हैं, वो भी कंफर्म नहीं है। तो इससे बड़ा तो मेरे ख्याल कोई आपका शक का विषय होना ही नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं पे मेरे ख्याल में SA 505 में हम गफलत में हैं, उसको जरा देखने की कोशिश करें कि हमें करना क्या है उसके अंदर। और करना यही है कि कहीं ना कहीं पे हमें कंफर्मेशन लेनी है, और कंफर्मेशन अगर नहीं आई है तो उस केस में मुझे एक्सटर्नल प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। और ये भी नहीं होना चाहिए कि डेटर से तो कंफर्म करवाऊंगा, क्रेडिटर से कंफर्म नहीं करवाऊंगा, या क्रेडिटर से कंफर्म करवाऊंगा, डेटर से कंफर्म नहीं करवाऊंगा। क्यों? ऐसा क्यों है? अगर ये भी होता, अभी एक केस हमारे सामने है जिसमें यही है कि एक साइड को तो उसने कंफर्म करवाया है, दूसरी साइड को कंफर्म करवाने को तैयार नहीं है, और दूसरी ही साइड में सारी गलतियां निकली हैं, जो भी जहां से भी गलतियां निकल के आई हैं। तो कहीं पे परचेज गलत बुक हो रही है, कहीं पे सेल गलत बुक हो रही है, कहीं पे सेल की ओवर इनवॉइसिंग हो रही है, कहीं पे सेल की अंडर इनवॉइसिंग हो रही है, कहीं पे परचेज की ओवर इनवॉइसिंग हो रही है, कहीं पे परचेज की अंडर इनवॉइसिंग हो रही है। मैं ये आपसे इतने जोर से इसलिए इस बात को कर रहा हूँ क्योंकि हो क्या रहा है कि हमारी बैलेंस शीट्स, कंपनी की बैलेंस शीट्स, बाकी तो भूल जाइए आप, कंपनी की बैलेंस शीट्स के अंदर, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा रहता, ऑल पार्टी बैलेंसेस आर सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन एंड रिकंसिलिएशन। और जहां पे आपने ये चीज लिखी है, जहां पे भी आपने ये चीज लिख दी, यू आर लायबल टू अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ये आप बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जहां पे आपने ये बात लिखी वहां पे सेक्शन 143(9) और 143(10) की वायलेशन हो गई। इस बात को बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिएगा, क्योंकि अगर मैंने ये नोट्स टू अकाउंट में मैनेजमेंट से लिखवा दिया कि जी पार्टी बैलेंसेस की तो कंफर्मेशन हुई नहीं, रिकंसिलिएशन हुआ नहीं, और मैंने अपनी रिपोर्ट में क्वालिफाई नहीं किया। नोट्स टू अकाउंट्स मेरे नहीं होते कभी भी, नोट्स टू अकाउंट्स हमेशा पार्टी के होते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंट्स along with the notes to accounts is the responsibility of the management. Audit is my responsibility, expressing an opinion is my responsibility. हमारी समस्या ये है कि हम नोट्स टू अकाउंट्स को भी अपने ही समझते हैं, बनाते तो हम ही, अनफॉर्चुनेटली बनाते हम ही है। और इसलिए कई नोट्स टू अकाउंट्स की लैंग्वेज भी इस तरीके से होती है जैसे ऑडिटर की लैंग्वेज हो।
तो उस बात को जरा मद्देनजर रखें कि भैया नोट्स टू अकाउंट्स में जहां पे भी आपने बार बार ये लिखा दैट पार्टी बैलेंसेस आर सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन रिकंसिलिएशन, तो यू हैव एक्सपोज्ड योरसेल्फ इमीडिएटली टू द डिसिप्लिनरी एक्शन. लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट. ये तो आरओसी हमारे सोए हुए हैं, हमारे जितने भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं वो सो रहे हैं. जिस दिन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जागेंगे, पहला नोटिस कंपनी को नहीं जाएगा, ऑडिटर्स को जाएगा उस केस में. जहां जहां पे भी ये सेंटेंस लिखा होगा पार्टी बैलेंसेस आर सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन एंड रिकंसिलिएशन, कि बताइए कि 143(9) और 143(10) की कंप्लायंस आपने कैसे की. एंड देन एट दैट टाइम डोंट ब्लेम द डिसिप्लिनरी कमेटी की डिसिप्लिनरी कमेटी बहुत टफ है सर, क्योंकि आपने SA 505 की कंप्लायंस ही नहीं की उस पर्टिकुलर केस के अंदर. दूसरा स्टैंडर्ड जो मैं बार बार बात करता हूँ, दैट इज SA 580, दैट इज विद रिगार्ड टू द रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस. हम एक बड़ा हमें वो रहता है कि भाई जो भी चीज है ना मैनेजमेंट से हम लिखवा लेते हैं, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हमने ऐसे की है, डेटर्स हमारे सारे के सारे रियलाइजेबल हैं, क्रेडिटर्स हमारे सारे के सारे पेबल स्टेटेड हैं, कोई हमने चीज छुपाई नहीं है. यहाँ तक तो ठीक. कैश इन हैंड भी सर्टिफाई करवा लेते हैं, चेक्स इन हैंड भी मैनेजमेंट से सर्टिफाई करवा. ये सब चीजें देखने में बहुत अच्छी हैं. मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट था यही कि ऑडिटर को किसी तरीके से कुछ प्रोटेक्शन मिले, परंतु साथ में ये भी लिखा गया इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में SA 580 में कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन तो आप लीजिए, पर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन पे आप रिलाई ब्लाइंडली नहीं. आपको मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन को टेस्ट करना पड़ेगा, उसकी वेरिसिटी को टेस्ट करना पड़ेगा, उसकी ऑथेंटिसिटी को टेस्ट करना पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली हम उसको टेस्ट ही नहीं करते. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. किसी बैलेंस शीट के अंदर अगर चेक्स इन हैंड हो कि जी उनके पास 50 लाख के चेक्स इन हैंड है एज ऑन 31st of March, अगर 50 लाख के चेक्स इन हैंड है तो इसका मतलब यह है कि पार्टी को हमने क्रेडिट दे दिया, डेटर्स हमने घटा दिए, बैंक जो अपने चेक्स इन हैंड था वो डेबिट कर दिया, तो डेटर्स की फिगर तो मेरी अंडरस्टेट हो गई. अब ये होता है जब कभी मैंने बैंक को ये दिखाना हो कि मेरा कोई भी बैलेंस जो है डेटर्स का वो 6 महीने से पुराना नहीं है, 3 महीने से पुराना नहीं, जो भी मेरी बैंक्स के साथ कंडीशंस है, मैं चेक्स इन हैंड दिखा के डेटर्स को क्रेडिट कर देता हूँ उस डेट में. ये तो मैंने बड़ी छोटी सी फिगर बताई है, कितनी बड़ी बड़ी फिगर्स के केसेस आते हैं, इस पर मैं आपसे चर्चा नहीं कर रहा हूँ. If this is the kind of situation that we find ourselves in, और 50 लाख रुपए की रियलाइजेशन अगर चेक्स इन हैंड है तो भैया 1 तारीख को डिपॉजिट होने चाहिए 1 अप्रैल को, और 7 अप्रैल तक सारे के सारे क्रेडिट आने चाहिए. अगर वो बैंक रिकंसिलिएशन में आते रहते हैं अगले 3 महीने, तो इसका मतलब चेक्स इन हैंड कभी थे नहीं. एज एन ऑडिटर मेरी ये ड्यूटी है देखना कि जो चेक्स इन हैंड दिखाए जा रहे हैं वो चेक्स इन हैंड थे भी या कभी नहीं थे. सिमिलरली कैश इन हैंड की बात है, कैश इन हैंड वो दिखाता रहता है एक पर्टिकुलर अमाउंट, और हम कहते हैं हाँ जी बिल्कुल है, उसने पार्टी ने कंफर्म किया कि कैश इन हैंड है. मैं आपसे एक एग्जांपल के तौर पे पूछता हूँ. अभी तो किसी असेसिंग ऑफिसर ने हमें पकड़ा नहीं, किसी ने हमसे पूछा ही नहीं एक्चुअली असेसिंग ऑफिसर ने. If I were the assessing officer, I would have challenged the auditor first rather than the party for that matter. जिस दिन मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन की स्कीम अनाउंस की थी, 7 नवंबर थी या 6 नवंबर थी, मुझे डेट एग्जैक्टली एक कहीं पे गफलत है. वो जब स्कीम अनाउंस हुई डीमोनेटाइजेशन की, डीमोनेटाइजेशन के दिन में हम लोगों ने कैश दिखाया हुआ है करोड़ों का, लाखों में, और उससे पहले अगर 6 महीने का मैं कंडक्ट उस अकाउंट में देख लूं या 8 महीने का कंडक्ट देख लूं, तो जिस दिन 10,000 की कैश पेमेंट करनी होती ना फ्रेट की, उस दिन मैं बैंक से जाके पैसा विड्रॉ करके लाता हूं. तो कैश कभी था क्या उनके पास? सिमिलरली आज की डेट में जो आप ऑडिट कर रहे हैं,
अगर किसी में वो कैश इन हैंड दिखाता 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया और 15,000 की कैश की पेमेंट करनी होती है फ्रेट की या किसी और चीज की, और वो 10,000 का कैश विड्रॉ करके लाता कहीं से बैंक से, तो आपको ये पता नहीं लग रहा कि एज एन ऑडिटर कि वहां पे कैश इन हैंड नहीं है? और अगर नहीं है तो मैंने क्या किया उसमें? जहां जहां पे कैश इन हैंड की इस तरीके की सर्टिफिकेशन है कि वो सेट को कैश इन हैंड एक्चुअल में नहीं था उनके पास, और मुझे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि ये कैश इन हैंड है नहीं इनके पास, एक मैं 31 मार्च को कैश इन हैंड दिखाता हूँ 50,000 रुपया, और 1 मार्च को विड्रॉल दिखाता हूँ 5,000 रुपए की, और फिर उससे किसी क्रेडिटर को या स्टाफ को एडवांस देता हूँ, तो वो कैश इन हैंड है नहीं 50,000 रुपए का, और मैं उस पर फिर कोई सिर्फ ये लिख देता हूँ कैश वेरीफाइड। कैश वेरीफाइड तो भाई डिनोमिनेशन भी होनी चाहिए कैश की। डिनोमिनेशन कौन सी थी वेरिफिकेशन की? वो डिनोमिनेशन मुझे कहीं पे नजर नहीं आती कि वो डिनोमिनेशन क्या है। तो ये मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन का कोई औचित्य नहीं है। मैनेजमेंट ये कहती है कि मेरे सारे के सारे डेट रिकवरेबल हैं, कि भैया तो फिर ये जो बीच के बिल से इनकी पेमेंट क्यों नहीं आई? वो कहती है कि हमने सारी लायबिलिटीज बुक कर रखी हैं, पर मैं अगर एक केस उठा के देखता हूँ तो केस मेरे अगेंस्ट फाइल्ड है और मैंने वकील को फीस दे रखी है उस केस की कि वो पार्टी मेरे से क्लेम कर रही है, और मैंने उसको कहीं पे कंटिंजेंट लायबिलिटी भी नहीं दिखा रखा। तो भाई मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन को उतना ही एक्सेप्ट करना है जितना मैं कर सकता हूँ, और अगर मैं मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसमें खामियां हैं, वो अपने आप में वैलिडेट नहीं हो रही, उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव नहीं हो रही, उसकी वेरिसिटी प्रूव नहीं हो रही, तो मुझे उसको नहीं मानना है किसी भी सूरत में। तो इस बात को जरा मद्देनजर रखते हुए चलिएगा। तो management representation itself may be one of the best things, but management representation, if is false, then then your responsibility becomes much greater. मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे पास एक केस आया, गुजरात से केस है टैक्स ऑडिट का, और वो केस यही था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कि इसमें टर्नओवर जो है वो इन्फ्लेटेड है। उन्होंने ये लिखा कि इस जगह पे जो एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस के ऊपर वो ऑफिस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और जब उन्होंने ये लिखा कि उस एड्रेस के ऊपर वो ऑफिस एग्जिस्ट नहीं करता है, the case was filed before the disciplinary committee. Disciplinary committee, when he appeared before the disciplinary committee, we asked the simple question to him कि भाई आपने ऑडिट कहाँ पे बैठ के किया, कि where did you conduct the audit? तो उसने बोला कि मैंने तो ऑडिट जो अपने ऑफिस में बैठ के किया। तो हमने कहा कि आपको किताबें किसने ला के दी? Who brought you the books of accounts? सर मुझे तो एक अकाउंटेंट थे, उनके वही किताबें लेके आते थे और मैं तो कभी उनके ऑफिस गया नहीं। हमने उससे पूछा कि आपने कभी पार्टनर्स के साथ मीटिंग की? पार्टनरशिप फर्म का केस। तो बोला जी मैं कभी किसी पार्टनर के साथ नहीं मिला। हमने कहा आपने ये वेरीफाई किया कि जो सिग्नेचर्स थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे उनके थे? तो मैंने ये वेरीफाई नहीं किया, मेरे पास तो साइन हो गया था तो मैं कर देता था। हमने कहा आपने कभी जाके उनकी इन्वेंट्री वेरीफाई की? कहने जी जरूरत नहीं थी क्योंकि इन्वेंट्री उन्होंने लिख के दिया एज सर्टिफाइड एंड वेरीफाइड बाय द मैनेजमेंट। हमने कहा आपने कभी उनका कैश इन एंड वेरीफाई किया? बोला ये भी उन्होंने लिख के दिया कि एज सर्टिफाइड एंड वेरीफाइड बाय द मैनेजमेंट। मैंने कहा तो फिर तो सारी बैलेंस शीट ही उन्होंने लिख के दी थी आपको एज सर्टिफाइड एंड वेरीफाइड बाय द मैनेजमेंट, तो आपका क्या रोल था उसके अंदर? तो आपका तो रोल ही जीरो है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू प्रूव यू इज कि अगर मुझे कुछ करना ही नहीं है, अगर सारे का सारा सर्टिफिकेशन मैनेजमेंट नहीं करके देना, इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी उसने सर्टिफाई करके देनी है, फिजिकल वेरिफिकेशन भी उसी ने करके देनी है, कैश इन हैंड भी उसी ने सर्टिफाई करके देना, और फिर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन मुझे उसको करके दे देना, फिर मेरे को ऑडिट करने की क्या जरूरत है? मुझे ऑडिट करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। And in that particular case, the case of the central, the CBI and the Enforcement Directorate was that these companies never existed, these firms never existed.
These firms never existed. तो जो वो फर्म्स एग्जिस्ट नहीं करती थी उनका ऑडिट होता रहा, और उनका ऑडिट होने के बाद शेल कंपनीज क्रिएटेड रही, उन्होंने बैंक से लोन लिए, सब कुछ किया. That was not the intention. So the point that one is trying to drive you home is कि जब कभी भी मेरे पास कोई मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन होगी तो मैं मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन को टेस्ट करूंगा. मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करूंगा किसी भी सूरत के अंदर. अगर मैं ऐसे 250 के ऊपर जाऊं, ऐसे 240 के ऊपर जाऊं, जो मेरे ऐसे 240 फ्रॉड्स के ऊपर है, बेसिकली ऐसे 240 टॉक्स ऑफ फ्रॉड्स, the responsibilities of the auditors with regard to the frauds. एक जब मैं बीकॉम कर रहा था 1971 के अंदर, तो एक केस था इंग्लैंड का, किंगस्टन कॉटन मिल्स केस, और उस किंगस्टन कॉटन मिल्स के केस के अंदर हमने भूषण टंडन साहब की किताब में ये पढ़ा था कि भाई ऑडिटर इज ए वॉच डॉग नॉट ए ब्लड हाउंड, और इसलिए उसकी जरूरत नहीं है, उसको इन्वेंट्री की वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है. इतने साल बीत गए, आज भी हम उसी कंसेप्ट के ऊपर बैठे हैं, दैट ऑडिटर इज ए वॉच डॉग नॉट ए ब्लड हाउंड. अरे बार्किंग डॉग तो बन जाओ यार, कहा तो हमें डॉग ही गया इन एनी केस, चाहे हमें वॉच डॉग गया था या हमें ब्लड हाउंड की बात हुई थी, बट लेट्स बिकम ए बार्किंग डॉग. कोई अलार्मिंग सिग्नल तो भेजे हम कहीं पे वर्ल्ड में. हम तो कुछ करने को तैयार नहीं है किन्हीं मुद्दों के ऊपर. अगर इन्वेंट्री एग्जिस्ट नहीं करती, आई विल कम टू दैट. अभी जो कारो 20 चेंज हुई है, कारो 2020 आपके जो अगले साल आपको देनी पड़ेगी कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर में, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया, और वो क्वेश्चन ये आया है कि जो अगर किसी भी कंपनी ने वर्किंग कैपिटल लिमिट्स ली हैं 5 करोड़ से ऊपर की, और वो कंपनीज या कोई भी बारोर अपना कोई स्टेटमेंट, मतलब कि चाहे वो डेटर्स का हो, चाहे वो क्रेडिटर्स का हो, चाहे वो इन्वेंट्रीज का हो, अगर सबमिट करता है बैंक को, तो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर ऑडिटर को ये बताना है कि क्या वो फिगर्स किताबों में से हैं या हवा में से हैं. ये क्यों आया? ये सिर्फ इसीलिए आया है क्योंकि हमने ये किया नहीं जब हमें करना चाहिए था. हमने ऐसे 240 को यूज ही नहीं किया. हम सबको ये मालूम था कि जो स्टॉक स्टेटमेंट्स जा रही हैं वो स्टॉक स्टेटमेंट जस्टिफाइड नहीं है. मैं तुम छोटी सी बात बताता हूँ. एक कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल हो कि फिनिश्ड गुड्स जो है मेरी 5 दिन के अंदर बन जाएंगे, और उसका वर्क इन प्रोग्रेस 3 महीने का पड़ा हो, ये कैसे हो सकता? अगर उसका ऑपरेटिंग साइकिल मैन्युफैक्चरिंग का ऑपरेटिंग साइकिल 5 दिन का है, तो जिस दिन रॉ मटेरियल पड़ेगा फिनिश गुड्स कन्वर्ट होकर निकल आएगी 5 दिन के बाद, तो वर्क इन प्रोग्रेस मेरे पास 5 दिन का हो सकता. 5 दिन से ऊपर का मेरा वर्क इन प्रोग्रेस नहीं हो सकता. मैं कहता हूँ 5 दिन का नहीं होगा, 7 दिन का होगा, 10 दिन का होगा, 3 महीने का कैसे हो जाएगा? हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे जहां पे 10-10 महीने का वर्क इन प्रोग्रेस है, और ऑडिटर साहब चुप हैं. अगर ऑडिटर साहब चुप रहेंगे और ऐसे 240 को इन्वोक नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी. अब वो ऐसे अब कारों के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा. There has been a case, उसका शायद पनिशमेंट हमने कल ही दिया हो, ये भी पॉसिबल है, कि उसके अंदर उसने एक डेटर स्टेटमेंट सर्टिफाई किया होगा. दिसंबर में एक स्टेटमेंट सर्टिफाई किया डेटर्स का, और दिसंबर में उन्होंने सर्टिफाई किए एन एक्स अमाउंट ऑफ डेटर्स, से ही सर्टिफाइड 292 करोड़ रुपीस ऑफ डेटर्स. मैं आपको मोटे तौर पे एक फिगर दे रहा हूँ कि उन्होंने 292 करोड़ के डेटर सर्टिफाई किए दिसंबर 2015 में. ओपनिंग डेटर्स 1 अप्रैल 2015 को 55 करोड़ के थे. 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक की सेल 205 करोड़ है. अगर मैं ये मान लूं कि 55 करोड़ के ओपनिंग डेटर्स और 205 करोड़ की पूरी सेल, एक भी पैसा नहीं आया,
तो भी 31 मार्च को मेरे टोटल डेटर्स होने चाहिए थे 260 करोड़ के, और मैं दिसंबर 2015 में 290 करोड़ का 292 करोड़ का डेटर सर्टिफाई कर रहा हूँ। कहाँ से किया भाई मैंने? कौन से हवा से किए? किस हवा से मैंने कर दिया वो? और अगर मैं ये कहता रहूं कि नहीं जी मेरा तो एसएट 240 जो है, मुझे सिर्फ इतना ही कहता है कि अगर मुझे लगेगी फ्रॉड है तो मुझे उसको देखना, तो ये इसमें लगने वाली बात नहीं थी क्या कि मेरी टर्नओवर किताबों में 205 करोड़ की हो पूरे साल के अंदर, और मैं 31 दिसंबर को 292 करोड़ के डेटर सर्टिफाई कर रहा हूँ, और जबकि ओपनिंग 55 करोड़ है। और मैं अगर ये मान लूं कि पूरे साल की सेल भी मेरे पास और ओपनिंग डेटर्स भी एक पैसा नहीं है, तो भी 260 से ऊपर नहीं हो सकते। तो ये तो हो नहीं सकता किसी भी बिजनेस में कि एक भी पैसा कभी मेरे को रियलाइज नहीं होगा, और अगर रियलाइज नहीं हो रहा था तो मेरी डीपी नहीं बननी चाहिए किसी भी सूरत में। ये प्रॉब्लम है। और फिर मैंने कभी उसमें एजिंग में ये नहीं दिखाया कि 3 महीने से पुराने या 6 महीने से पुराने। तो ऐसे केस में आप बचेंगे कैसे? सो एसएट 240 को हमने अब्यूज किया। तो एसएट 240 में जहां जहां पे मुझे इंडिकेटर्स हैं, जहां जहां पे मुझे ये लग रहा है कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, वहां पे मुझे एसएट 240 को इन्वोक करके ये बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्रॉड की संभावना है, और वो फ्रॉड निकालने की मुझे कोशिश करनी पड़ेगी हर सूरत के अंदर। मैं कई जगह आपको ये बता सकता हूँ कि ये होता है कि जो बैंक है वो ये लिख के देता है कि आप सिर्फ जेन्युइन ट्रेड बिल्स डिस्काउंट करेंगे, और वहां पे अकोमोडेशन बिल्स डिस्काउंट होते रहते हैं। अकोमोडेशन बिल्स क्या है? मैंने जिसको माल भेजा नहीं उसके ऊपर मैंने बिल ड्रॉ कर दिया, और उसके अकोमोडेशन बिल में ड्रॉ करता रहा। वो अकोमोडेशन बिल कभी भी किसी भी सूरत में जेन्युइन ट्रेड बिल्स नहीं है, एंड दोज आर कॉन्ट्री टू द टर्म्स ऑफ द सैंक्शन ऑफ द लोन। मेरी सेल तो हो 100 करोड़ की और मेरे बिल्स डिस्काउंट हो जाए 150 करोड़ के, तो ये कैसे हो जाएगा? वो क्योंकि किताबों में से सेल आई नहीं रही है, बेसिकली वो बिल सिर्फ बन रहे हैं। तो वो ये सब चीजें जो हैं, और अगर मैं उनके वो इनवॉइसेस देखूं, जिस इनवॉइसेस को उन्होंने डिस्काउंट करवाया है उसके ऊपर ना तो ट्रांसपोर्टर का नंबर है, और अगर मैं ट्रांसपोर्टर का नंबर देख लूं और उसको व्हीकल इंफॉर्मेशन ऐप में डालूं तो मुझे पता लगता है कि ये तो स्कूटर का नंबर है, ये उसका नंबर ही नहीं है, ना कार का, ना जीप का, ना ट्रक का। ये सब चीजें कहीं ना कहीं पे अपने आप में गफलत कर रहे हैं। जितने राइट शेयर्स थे इस कंट्री के अंदर, पूरी कंट्री की बात कर रहा हूँ, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर रीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, सबको ये कहा गया था कि भाई यू विल एंजॉय डीपी अगेंस्ट ए स्टॉक ऑफ अबाउट 3 months, और सबके स्टॉक लेवल्स 10-10 महीने के थे, 11-11 महीने के। कैसे थे? क्योंकि स्टॉक एग्जिस्ट नहीं करते थे, स्टॉक सिर्फ दिखाए जा रहे थे, लॉसेस को स्टॉक्स में कन्वर्ट किया गया था। तो ये क्या फ्रॉड आप नजर नहीं आ रहा था कि ऑडिटर्स को? बिल्कुल नजर आ रहा था, पकड़ा नहीं गया। यही बात है कि एसएट 240 जो है उसकी जो अवहेलना हुई, या जो बैंक के 11 लाख करोड़ के एनपीए खड़े हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योगदान तो हमारा भी है। हम कितना भी कहते रहे कि पार्टी का बिजनेस खराब था, किसी और कारण से था, कहीं ना कहीं हमारा भी योगदान है इस पूरे उसके अंदर। तो हमें इससे बचना पड़ेगा, और एसएट 240 को थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। एसएट 250 बात करता है नॉन कंप्लायंसेस विद द लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ द लैंड। When I talk of Asset 250 with the non-compliances of the laws and regulation of the land, what I am trying to tell you is कि जो भी मेरे लॉज हैं इस देश के, जो खास तौर पे फाइनेंशियल लॉज हैं, बाकी तो भूल जाइए आप, बाकियों की तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे। वो तो जो नया कोड ऑफ एथिक्स आएगा अभी, उसमें पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज पे आपको करने पड़ेंगे। जो एक साथ से आना था उसमें 3 क्लॉजेस अभी डेफर हुए हैं, उसमें से एक क्लॉज ये भी डेफर हुआ नॉकलर वाला, परंतु एसए 250 डेफर नहीं हुआ। एसए 250 है, आज पहले भी था और आज भी है। मैं तो आपको कुछ एग्जांपल देने की बात कर रहा हूँ। बोनस एक्ट है, बोनस एक्ट कहता है कि भाई बोनस दिया जाएगा एज पर द एलोकेबल सरप्लस। एलोकेबल सरप्लस नहीं भी बनेगा तो 8.33% बोनस आपको देना पड़ेगा अगर आप प्रॉफिटेबल कंपनी है।
परंतु जहां पे आपका एलोकेबल सरप्लस 20% का बनता है और ये कहता है कि आपको 20% बोनस देना, और आप बोनस फिर भी 8.33% दे रहे हैं, तो आप उसके भागीदार बन गए मिस रिपोर्टिंग के। और कोई भी एम्प्लॉय खड़ा होकर अगर कंप्लेंट कर देगा कि जी एलोकेबल सरप्लस तो 20% का था और 8.33% मिलता रहा और ऑडिटर ने कभी रिपोर्ट को क्वालिफाई नहीं किया, तो मुझे कोई बचा नहीं सकता उस केस में। ये फाइनेंशियल लॉज है और इन फाइनेंशियल लॉज की अवहेलना नहीं हो सकती किसी भी सूरत के अंदर। तो उन सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, उन सब चीजों को देखते हुए इस बात को मद्देनजर रखिए। प्रोविडेंट फंड का है, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। जिस कंपनी में, जिस एंटिटी में, चाहे वो प्रोप्राइटरी हो, पार्टनरशिप हो, अगर एक नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बियॉन्ड कोई बिजनेस एंटिटी एम्प्लॉय करती है तो उसमें प्रोविडेंट फंड लागू है। हमने देखा है क्या? मैं क्वेश्चन अपने आप से भी पूछता हूँ, कई बार आप ही से नहीं पूछ रहा हूँ, अपने आप से भी क्वेश्चन पूछता हूँ कि हम देखते हैं क्या। मैं सपोज कीजिए मैंने 1 करोड़ की वेजेस पे की है और वो वेजेस वो हैं जिन पे की जो कवर्ड है मेरी। सपोज कीजिए अगर प्रोविडेंट फंड लागू होता तो उसमें वो कवर्ड होते और मेरा प्रॉफिट है सिर्फ 25 लाख या 30 लाख रुपया। अगर मैं प्रोविडेंट फंड में अपने को रजिस्टर करवाता हूँ ना, तो मेरी जो वेजेस की कॉस्ट के ऊपर और 20% कॉस्ट आती है, करीबन 20 से 24% कॉस्ट और आती है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन प्लस ESI एटसेट्रा मिला के, फैमिली पेंशन मिला के 20 से 22% आती है। अगर मैंने 1 करोड़ की मेरी वो वेजेस थी लायबल फॉर प्रोविडेंट फंड और उसमें मुझे सपोज कीजिए 22 लाख रुपए और खर्च करना पड़ता है, 20 लाख या 15 लाख और खर्च करना पड़ता है और मैं प्रॉफिट दिखा रहा हूँ 20 लाख रुपए का, तो इज दिस प्रॉफिट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट? माय आंसर इज नो। मैं किसी कंपनी में ऑडिटर हूँ, किसी एंटिटी में ऑडिटर हूँ, उसको नोटिस आया हुआ एनवायरमेंटल लॉज का कि भी आप ये पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाइए, नहीं लगाएंगे तो हम आपकी फैक्ट्री बंद कर देंगे अगले 6 महीने में। और मैं उसको लेके बिल्कुल निश्चिंत हूँ, सो रहा हूँ, किसी तरीके का कोई कमेंट नहीं है। मेरा AS1 भी बात करता है गोइंग कंसर्न की, और वो ये कहता है गोइंग कंसर्न क्या है कि अगर अगले 6 महीने में बंद ही कर देना और आपके पास पैसा नहीं है पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट के लिए और आप लगा नहीं रहे हैं और नोटिस आपको आया हुआ कि आप बंद हो जाएंगे, तो कैन यू बी कंसिडर्ड टू बी अ गोइंग कंसर्न? तो आई थिंक देयर आर मेनी सच लॉज जहां पे अगर आप वायलेट करते हैं उसकी इम्प्लीकेशंस हैं। और ये स्टैंडर्ड SA 250 अपने आप में ये कहता है कि अगर आपकी नॉन कंप्लायंसेस हैं जो फाइनेंशियल हैं और जो सिग्निफिकेंट हैं, जो मटेरियल हैं, जो ट्रू एंड फेयर व्यू को डिस्टॉर्ट कर सकती है, तो आपको मेन रिपोर्ट को क्वालिफाई करना है। यू आर सपोज टू क्वालिफाई द मेन रिपोर्ट। हम कारों के अंदर लिखते रहते हैं अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज के बारे में, परंतु यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखते मेन रिपोर्ट में। अगर मैंने बोनस एक्ट के तहत ठीक ढंग से बोनस नहीं दिया, मैंने अगर प्रोविडेंट फंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, मैंने अगर एनवायरमेंटल लॉज का कंप्लायंस नहीं किया, तो मुझे कहीं ना कहीं SA 250 के अंदर उनको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। I have absolutely no choice so far as that particular part is concerned. Then it comes to, I will cover some more standards basically. एक स्टैंडर्ड उसमें SA 570 है विद रिगार्ड टू द गोइंग कंसर्न। आज की डेट में कोविड के चलते, कोरोना के चलते, इससे ज्यादा सिग्निफिकेंट स्टैंडर्ड कोई है नहीं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड अपने आप में, अगर आज की डेट में आप देखें, अगर आपके क्लाइंट्स कोई ट्रेवल ऑपरेटर्स हैं, अगर आपके क्लाइंट्स कोई रेस्टोरेंट्स हैं, आपके क्लाइंट्स कोई अम्यूजमेंट पार्क वाले हैं, ये चल रहे हैं क्या? एक वो कंपनी थी स्माश पीछे जो एंटरटेनमेंट, बच्चों का अम्यूजमेंट पार्क वगैरह कर रखा था उन्होंने, कल बंद होने
क्या नोटिस आ गया उनका, जितने आपके टूर ऑपरेटर हैं या ट्रेवल ऑपरेटर हैं उनकी क्या पोजीशन है आपको मालूम है, एविएशन कंपनीज का आपको मालूम है, आपको रेस्टोरेंट्स का मालूम है। जो तो टेक अवे वाले थे वो तो बचे हुए हैं, जिनके यहाँ पे बैठ के खाना था जिनका, उनकी हालत तो बहुत पतली है। वो गोइंग कंसर्न रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। ये स्टैंडर्ड अपने आप में क्या कहता, क्योंकि मेरा तो AS1 फंडामेंटल है। AS1 फंडामेंटल ये कहता है कि भाई मेरे अकाउंट गोइंग कंसर्न के ऊपर बने हैं, तो गोइंग कंसर्न है भी या नहीं है, और अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो मेरे को फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर अकाउंट्स नहीं बनाने, फिर मुझे को रियलाइजेबल वैल्यूज के ऊपर अकाउंट्स बनाने फॉर दैट मैटर। एज एन ऑडिटर मुझे मैनेजमेंट से ये लेना है कि आपकी कंपनी इन द नियर फ्यूचर सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, आपकी एंटिटी सस्टेन करेगी या नहीं करेगी। अगर आपकी एंटिटी सस्टेन नहीं करेगी इन द नियर फ्यूचर तो वो गोइंग कंसर्न नहीं है। नियर फ्यूचर का मतलब क्या, आप 1 साल मान लीजिए, परंतु प्रोजेक्शन आप जरूरी नहीं कि 1 साल के लिए। 2 चीजें आपको बता दूं, सॉल्वेंसी का होना और गोइंग कंसर्न का होना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। सॉल्वेंसी से मेरी ऑपरेशंस की किसी हद तक कटेलमेंट हो सकती है, परंतु सॉल्वेंसी को मैं सॉल्व कर सकता हूं। परंतु अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ही ना रहे, अगर मेरे को ऑपरेशंस ही फिजिबल ना हो, मेरे ऑपरेशंस वायबल ना रहे, अगर मैं प्रोडक्ट तो बनाता हूँ 100 रुपए पे और बेच रहा हूँ उसको 80 रुपए पे, तो मैं वायबल कभी रह नहीं सकता। अगर मेरी वेरिएबल कॉस्ट ही मीट नहीं हो रही है तो मैं कभी भी सस्टेन नहीं कर पाऊंगा इन ओवर द पीरियड्स। तो ये स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप मैनेजमेंट से लिखवाइए, आप मैनेजमेंट की असम्पशंस लीजिए, मैनेजमेंट के असम्पशन को आप चेक करिए। अगर आपको मैनेजमेंट की असम्पशंस ठीक लगती है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे 700 में लिख दीजिए कि हमने गोइंग कंसर्न की असम्पशन ले ली और हमें ठीक लगती है। और अगर आपको गोइंग कंसर्न की असम्पशन उनकी ठीक नहीं लगती है तो वो ये भी कहता है कि आप उसमें ये लिखिए कि इन्होंने हमें असम्पशन दी है, मैनेजमेंट ये कह रही है कि भाई हमारी ये गोइंग कंसर्न है, पर हमें नहीं लगता कि ये गोइंग कंसर्न है। तीसरी बात वो ये कहता है कि अगर वो गोइंग कंसर्न की बात कर रहा है पर आपको ये लगता है कि देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी विद रिगार्ड टू दिस, मतलब कि आप कंक्लूसिवली नहीं कह सकते कि ये चालू रहेगा या नहीं रहेगा, परंतु आपके मन में कहीं पे डर है कि ये चालू रहेगा या नहीं रहेगा, तो वो कहता है कि आप उसको डिस्क्लोजर कर दीजिए ऐसे 700 में। और मतलब कि टेस्ट तो आपने करना है ऐसे 570 में और डिस्क्लोजर आपने करना है ऐसे 700 में। ये दोनों चीजें जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे 700 में एक पर्टिकुलर पैराग्राफ है आपका, इसके ऊपर ऐसे 570 में आपको दिया गया भी किन कंडीशन में आपको ये लग सकता है कि ये गोइंग कंसर्न है या नहीं है। सीधी सी बात है, अगर आपकी कैश लॉसेस ह्यूज है और चल रही है कैश लॉसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आप लंबा सस्टेन नहीं कर पाएंगे अनलेस द पार्टी इज वेरी स्ट्रांग और वो कैश इन्फ्यूज करने के लिए तैयार है। दूसरा ये है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही खत्म हो गई। आप कभी सोचिए, जब हम सीए कर रहे थे तो मेरे सामने मुझे जो फोटोज में नजर आ रहे हैं, रूंगटा साहब नजर आ रहे हैं, शाही साहब नजर आ रहे हैं, तो हमारे पीरियड की बात कर रहा हूँ सर मैं, आपका भी पीरियड वही है। एक्फा फिल्म होती थी, अगर आपको याद हो, एक्फा कोडक फिल्म आती थी कैमरे के लिए। आज कहीं पे है क्या? कहीं नहीं, खत्म हो गई। वो गोइंग कंसर्न नहीं रही ना, क्योंकि किसी ने इनोवेट ही नहीं किया, प्रोडक्ट की डिमांड ही खत्म हो गई। और जब से ये मोबाइल आए हैं और स्मार्ट मोबाइल आए हैं, तब से तो मेरा ख्याल कैमरास की डिमांड खत्म हो गई मोर और लेस। अब तो आप कहीं पे भी खड़े होकर फोटो खींचना शुरू कर देते हैं। अब तो सिर्फ जो बहुत कनर्जर्स हैं, बेसिकली जो बहुत शौकीन हैं, वो कैमरास लेते हैं, वरना बाकी लोग तो स्मार्टफोन के ऊपर ही फोटोज खींच के अपना गुजारा कर रहे हैं। आज की डेट में ऐसे ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जिनकी फोटोज आपके कई कैमरों से मच बेटर है फ्रॉम दैट मैटर, फ्रॉम दैट एंगल। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज
कि अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं बची, अगर आपके पास जो आपकी टेक्नोलॉजी है दैट हैज बिकम आउटडेटेड बेसिकली। आप इसको मान लीजिए, कभी नोकिया नोकिया होता था, आज नोकिया को आप सुनते नहीं कहीं पे। आज सैमसंग और एप्पल ही है, और बाकी भी आ गए लोग, पर नोकिया का नाम आपको नहीं सुनाई देता कहीं पे भी। तो ये जो भी टेक्नोलॉजी के साथ कदम नहीं रखता है, आज आपके पास एक वर्जन है कार्स का, इससे पहले दूसरा वर्जन था, फिर वो सरकार ने आके बंद कर दिया कि ये वर्जन अब कार्स का नहीं चलेगा। आप ये मान लीजिए अगले 5 साल में शायद ये जो डीजल वाली गाड़ियां हैं, ये पेट्रोल वाली गाड़ियां 5 साल में नहीं तो 10 साल में आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे आ जाएंगे। तो ये सब चीजें जब होंगी तो क्या होगा? आई थिंक दीज आर द इंडिकेटर्स के भी ये गोइंग कंसर्न रहेगी या नहीं रहेगी, वो मुझे सब चीजें देखनी है। और अगर वो गोइंग कंसर्न नहीं है, मुझे मैनेजमेंट से उनका टेस्ट लेना। मैनेजमेंट ही कह देती है गोइंग कंसर्न नहीं, तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर तो अकाउंट्स ही उस बेसिस पे बनने चाहिए रियलाइजेबल वैल्यू पे। मैनेजमेंट ये कहती है गोइंग कंसर्न है, मेरे हिसाब से वो गोइंग कंसर्न नहीं, तो मुझे रिपोर्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा अंडर SA700। दैट्स फॉर श्योर। मैनेजमेंट ये कहती है गोइंग कंसर्न है, और मैं ये समझता हूं कि इसमें मटेरियल अनसर्टेनिटीज हैं, तो मुझे ये रिपोर्ट करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट कह रही है मटेरियल अनसर्टेनिटीज हैं, पर हम अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई नहीं कर रहे इसके ऊपर। मैं समझता हूँ मटेरियल अनसर्टेनिटीज हैं, परंतु मैं इस बात पे पहुंच नहीं पा रहा हूँ कि कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी। परंतु कुछ रिपोर्ट्स ऐसी मिली पिछले दिनों जिसमें बिल्कुल विरोधाभास है, जिसमें कॉन्ट्रीव्यूज है लोगों पे। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। रिलायंस कैपिटल की रिपोर्ट आप पढ़िएगा, उठाइएगा, 2020 की जो रिपोर्ट है रिलायंस कैपिटल की, वो उठाइएगा, बड़ी मजेदार चीज है, आपको पढ़नी चाहिए वो। रिलायंस कैपिटल की पब्लिश रिपोर्ट है, इसलिए मुझे कुछ कहने में दिक्कत नहीं है, पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक कंपनी है। उनके ऑडिटर्स थे PwC, उन्होंने रिजाइन किया। उन्होंने कहा इसमें बहुत सारे लीगल मुद्दे हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां कि जिसकी वजह से हमें रिजाइन करना पड़ा। और उन्होंने 143(12) में इवन MCA को उसमें रिपोर्ट किया, और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में भी उन्होंने उसकी रिपोर्ट दी और रिजाइन कर दिया असाइनमेंट से। दूसरे ऑडिटर्स आए, उन्होंने जो SA700 की रिपोर्ट बनाई, SA700 की रिपोर्ट में तो उन्होंने ये लिखा कि मैनेजमेंट ने जो हमें कहा है वो कह रहे हैं कि गोइंग कंसर्न है, हमें मटेरियल अनसर्टेनिटी नजर आ रही, पर हम इसमें रिपोर्ट को क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। पर सेक्शन 143(3) में भी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ है, उसमें आपको गोइंग कंसर्न के ऊपर लिखना पड़ता है। वहां पे जाके उन्होंने लिखा दैट देयर इज अ चैलेंज विद रिगार्ड टू गोइंग कंसर्न एंड इट मे हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। ये मुझे बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि जब आप क्वालिफिकेशन की बात करते हैं SA700 में, तो आप कहते हैं जी मैं क्वालिफाई नहीं कर रहा हूँ, और 143(3) में जाके रिपोर्ट करते हैं तो कह रहे हैं जी हाँ जी इसका एडवर्स इफेक्ट होगा। क्योंकि एडवर्स इफेक्ट आप तभी लिखेंगे जब आपको क्वालिफाई करना है रिपोर्ट को, नहीं तो आप नहीं लिखेंगे किसी भी सूरत में। तो उस ऑडिटर को तो शायद इसी के बेसिस पे अगर कोई कल करना चाहे डिसिप्लिन में तो ला सकता है। बेसिकली दैट्स द वे आई लुक एट इट फ्रॉम दैट एंगल। और अगर आप उनकी इंटरनल कंट्रोल्स की रिपोर्ट पढ़ लें जो ऑडिटर्स ने लिखा है, तो उसमें तो ऐसा लिखता है कंपनी में कुछ है ही नहीं, ना तो उनके एप्लीकेशन रिसीव करने का कोई तरीका है, ना उसको असेस करने का कोई तरीका है, ना उसको मॉनिटर करने का तरीका है, ना डिसबर्स करने का तरीका है, ना उसको पैसा रिसीव करने का तरीका। अगर आप वो रिपोर्ट पढ़ें तो आपको लगता है कि कंपनी में है क्या, इसमें 0/0 है। पर ऑडिटर्स रिपोर्ट क्वालिफाई नहीं करते अपनी, तो ये तो इससे बड़ा विरोधाभास नहीं हो सकता कुछ भी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज SA570 को टेस्ट करिए। SA570 में 3 ऑप्शन आपको दी गई हैं, और SA570 में जो भी आपकी फाइंडिंग्स निकले उसको SA700 के अंदर आपने रिपोर्ट करना। प्लीज बी वेरी कॉशियस so far as this particular part is concerned।
एक और चीज जो सामने आई और शायद अब वो बंद हो जाएगी आने वाले समय में, ये आपको बता सकता हूँ, SA 530 डील करता है विद दिस सैम्पलिंग, ऑडिट सैम्पलिंग। इस सैंपल भी तो निकालना पड़ता है। हमारे टाइम पे तो मेरे ख्याल में बड़ा अजीब सा सिस्टम था कुछ, क्योंकि स्टैंडर्ड्स तो थे नहीं। अब तो वो बात सैंपलिंग की करता है, मेटेरियलिटी की करता है, सब चीज की करता है। जब डिसिप्लिन के सामने आते हैं ना लोग, तो जो चीज अच्छा वाला सैंपल होता है सिर्फ वही दे देते हैं कि साहब हमने तो ये सैंपल लिया था, इस सैंपल में हमें कुछ मिला नहीं। और जो खराबियां होती है वो कहते हैं जी हमारे इस सैंपल में कुछ खराब चीज मिली नहीं थी, इसलिए हमने आगे टेस्ट नहीं किया इसको। यहाँ तक लगता तो बड़ा अच्छा, परंतु इसमें तो बकायदा टेक्निक दी गई है सैंपलिंग की, ऑडिट सैंपलिंग में 530 में। और उसमें कहा गया कि आपको सैंपल पिकअप कैसे करना है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग भी है, रैंडम सैंपलिंग भी है, और हर चीज की अपनी मेच्योरिटी लेवल्स हैं बेसिकली। तो आप सिर्फ अच्छा सैंपल पिकअप नहीं कर सकते, आपको सैंपल तो एक पूरा ही पिकअप करना पड़ेगा। उसमें बड़े आइटम्स भी होंगे, उसमें छोटे आइटम्स भी होंगे, उसके में बीच के आइटम्स भी होंगे, सारे ही आइटम होंगे। उसमें सेल्स की भी आपकी सैंपलिंग होगी, उसमें परचेज की भी सैंपलिंग होगी, उसमें एडवर्टाइजमेंट की भी सैंपलिंग होगी, उसमें वेजेस की भी सैंपलिंग होगी। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर की वेजेस हैं तो उसकी सैंपलिंग अलग तरीके से होगी, उसमें आपने क्या टेस्ट करना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि SA 5 और अब जो आने वाले समय में ये आपको बता देता हूँ, अभी तो नहीं हुआ, आने वाले समय में और 2 साल बाद, ये मैक्सिमम टाइम दे रहा हूँ आपको अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखना पड़ा करेगा कि आपने सैंपल किस तरीके से पिकअप किया और आपका सैंपल साइज क्या था। ये आपको आगाह कर रहा हूँ, ये आपको आगाह कर रहा हूँ कि आपका सैंपल साइज क्या था और आपने सैंपल को पिकअप किस तरीके से किया, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग की क्या किया, ये सब आपको लिखना पड़ा करेगा आने वाले 2-1 साल के अंदर। इस बात से आप अब ये नहीं होगा कि आप किसी को बताएं नहीं कि भाई अगर एक केस आया था हमारे सामने डिसिप्लिनरी कमेटी का किसी बैंक का, उसमें ऑडिटर ने सिर्फ 24 एडवांसेस चेक किए हुए थे। मैं मेन ऑडिटर की बात कर रहा हूँ, और उसमें ब्रांच ऑडिटर्स नहीं थे, प्राइवेट सेक्टर बैंक था। 24 एडवांसेस और पता नहीं 30-32 के करीब डिपॉजिटर्स चेक की हुई थी। So that cannot be considered to be the adequate size of the sample in any case. So what is important for us is to find out on what basis the sample was picked up, how the sample was picked up, how the sample was tested, and what were the findings in that particular sample, and how did you document those sample findings in the sample basically. ये सब चीजें आपने कैसे वो की, वो करने की जरूरत है अपने आप में। एक और जो आपसे बात करना चाहूंगा बेसिकली दैट इज SA 315, अंडरस्टैंडिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ये SA 315 ये कहता है कि जब आप किसी भी एंटिटी का ऑडिट करने जा रहे हैं ना, तो उसकी थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए एंटिटी के लोगों की। अगर एक प्रमोटर ऐसा है जिसके ऊपर पिछले केसेस भी चल रहे हैं कि एक ऐसी पार्टी है जो बैंक में डिफॉल्ट ही करती रहती है, तो आपको उससे एक अंदाजा तो लगना चाहिए कि ये पार्टी का ना ऑडिट करना थोड़ा रिस्की जॉब है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं झूठी फिगर्स इधर उधर देता रहा है बैंकर्स को। देखिए अगर कहीं पे अकाउंट डिफॉल्ट में गया क्योंकि बिजनेस नहीं था, वहां तक तो ठीक है, परंतु अगर कहीं पे उसके अगेंस्ट विलफुल डिफॉल्टर तक का तो नोटिस आया हुआ। अब तो हमने कारों में पूछ लिया, ये जो 20-20 की कारों आएगी इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि पार्टी विलफुल डिफॉल्टर तो नहीं है डिक्लेयर।
अगर एक पार्टी विलफुल डिफॉल्टर है तो उस कंपनी का ऑडिट करना तो अपने आप में ही चैलेंज है। क्योंकि जो आदमी जानबूझ के डिफॉल्ट करता है बैंक्स के साथ, जानबूझ के बैंक्स को धोखा देता है, अगर उसका मैं ऑडिट करना चाह रहा हूं तो एक अपने आप में रिस्की काम है। क्योंकि जो एंटिटी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में काम करती है, एक प्रमोटर का अपने करेक्टर होता है, एक इंटीग्रिटी लेवल होता है, किस तरीके से वो काम करते हैं। अगर उस तरीके से वो काम करते हैं, एक तो है इसका पूरे स्टैंडर्ड का मतलब ये समझना कि भाई आपकी प्रोसेसेस क्या है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि इस पूरी एंटिटी में प्रोसेसेस क्या है, तो फिर आप उस पर काम नहीं कर सकते। आप टैक्स ऑडिट भी करते हैं तो आप उसमें निकालते हैं, यील्ड निकालते हैं। बेसिकली यील्ड कब निकालेंगे? यील्ड तभी निकालेंगे जब आपको प्रोसेसेस का पता होगा। अगर आपको यही नहीं पता कि प्रोसेस क्या है तो यील्ड कैसे निकलेगी? यील्ड निकल ही नहीं सकती। और फिर पिछले साल में आइडियल यील्ड क्या थी और इस साल में यील्ड क्या है, ये भी अपने आप में विषय है। बेसिकली ये सब चीजें आपके एसए 315 में कवर्ड है। वो ये कहता है कि आप जिस कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं उसमें किस तरीके के रिस्क हैं आपके मटेरियल मिसस्टेटमेंट के। किसी कंपनी में क्रेडिटर्स का रिस्क ज्यादा हो सकता है, किसी कंपनी में डेटर्स का रिस्क ज्यादा हो सकता है। अगर आप किसी कंपनी में, मैं एक सीधी सी बात बता रहा हूँ, एक कंपनी है जिसमें टेंजिबल एसेट्स ज्यादा हैं, उसमें तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ टेंजिबल एसेट्स की बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर एक कंपनी है जिसमें सिर्फ इंटेंजिबल एसेट्स ही खड़े हैं, मेरे मेन वैल्यूएशन मेरी इंटेंजिबल एसेट्स की है, उसमें वैल्यूएशन का सबसे बड़ा रिस्क है कि वाकई में इंटेंजिबल एसेट एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती है। क्योंकि इंटेंजिबल एसेट की चोरी तो कोई क्या करेगा, इंटेंजिबल एसेट की तो वैल्यूएशन का ही असली रिस्क है। बेसिकली मटेरियल मिसस्टेटमेंट उसका इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यूएशन में हो सकता है। अगर एक कंपनी में एडवर्टीजमेंट ही अपने आप में मेन मुद्दा है कि वह 3 साल बाद एक नया प्रोडक्ट निकालता है और उसके ऊपर 5 करोड़ की एडवर्टीजमेंट खर्च करता है, तो वहां पे मेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट किसमें हो सकता है? एडवर्टीजमेंट के खर्चे में हो सकता है। क्योंकि वो खर्चा ही वहां पे मेन मुद्दा है। बेसिकली आप फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में मेन मुद्दा क्या हो सकता है? अगर कोई प्रोड्यूसर है जो उसने पेमेंट्स करनी है हीरो हीरोइंस को, बेसिकली एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, क्योंकि वहां पे जो जिस तरीके का कैश इकोनॉमी है वो हम सबको मालूम है। तो वो जो अंडर एक जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क है किस एरिया के अंदर है। अगर आप एक किसी ऐसी कंपनी में जाते हैं जहां पे इन्वेंट्री की ज्यादा होल्डिंग ही नहीं है, तो वहां पे इन्वेंट्री की मिसस्टेटमेंट नहीं हो सकती, वहां पे सेल्स की हो सकती है मिसस्टेटमेंट, वहां पे परचेजेस की मिसस्टेटमेंट हो सकती है। परंतु जहां पे इन्वेंट्रीज की होल्डिंग ज्यादा है वहां पे किस चीज की मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क है? वहां पे रिस्क है मेनली विद रिगार्ड टू द इन्वेंट्री। तो ये सब चीजें एसए 315 के अंदर कवर्ड है। और एसए 315 को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप ऑडिट अंडरटेक नहीं कर सकते, ये आपको बता सकता हूँ, हम माने या ना माने, क्योंकि ये पेरेंटल मदर स्टैंडर्ड है। इसको आप पढ़ेंगे तभी आप आगे चल पाएंगे। मैं 700, 705, 706 की बात नहीं कर रहा हूँ। 700 डील्स विद योर रिपोर्ट, वो तो रिपोर्ट को डील करता है। 705 डील करता है विद रिगार्ड टू कि अगर आपने रिपोर्ट को क्वालिफाई करना है, रिपोर्ट में डिस्क्लेमर देना है, रिपोर्ट में आपने क्वालिफिकेशन देनी है या डिस्क्लेमर देना है या आपने एडवर्स ओपिनियन देना है, उसको आपका एसए 705 डील करता है। एसए 705 ये कहता है कि भाई अगर आपने कोई एक आइटम देखा कि किसी चीज का नॉन प्रोविजन है, किसी चीज की नॉन अकाउंटिंग है, कोई आपने थोड़ी सी इनकम ज्यादा बुक कर ली या एक्सपेंस ज्यादा बुक कर लिया, परंतु इतनी ज्यादा गफलत नहीं है जिससे उसका ट्रू एंड फेयर व्यू अफेक्ट हो जाए, उसका अफेक्ट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ऑल परवेसिव नहीं है,
उस केस में आप सिर्फ क्वालिफाई कर दीजिए रिपोर्ट को। आप ये लिखिए दैट सो मच ऑफ एक्सपेंडिचर इज अनप्रोवाइडेड, नॉन प्रोवाइडेड, और सो मच ऑफ इनकम इज ओवरबुक्ड और अंडरबुक्ड, ये लिख के एंड देन यू से सब्जेक्ट टू अबव करके कर लीजिए, या एक्सेप्ट फॉर दिस एंड दिस कर लीजिए। वो है आपकी क्वालिफिकेशन। अगर आपको इस बात में कठिनाई हो रही है कि आप ये फॉर्म भी कर सकें ओपिनियन कि ट्रू एंड फेयर व्यू है भी या नहीं है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का हो या बैलेंस शीट का हो, क्योंकि ऐसे भी सर्कमस्टांसेस है आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रही पार्टी, और अगर वो पार्टी आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रही है तो आप ओपिनियन फॉर्म ही नहीं कर पाएंगे किसी भी सूरत में। तो आपको डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। डिस्क्लेमर इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ मॉडिफिकेशन इफ यू आस्क मी। क्वालिफिकेशन में तो ठीक है, मुझे इंफॉर्मेशन दी, मुझे नहीं जची, मैंने एक रिपोर्ट को क्वालिफाई कर दिया। एडवर्स ओपिनियन में भी उसने मुझे इंफॉर्मेशन दी है, परंतु डिस्क्लेमर के अंदर तो ये है कि मुझे उसने इस दुविधा में डाल दिया कि मुझे यही नहीं पता लग रहा कि ये ट्रू एंड फेयर है भी या नहीं है। कभी तो C&AG वालों को ये पता ही नहीं होता था कि डिस्क्लेमर भी कोई चीज होती है। वो ये कहते तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो एडवर्स ओपिनियन है या डिस्क्वालिफाइड रिपोर्ट है या क्लीन रिपोर्ट है। बाद में उनको पता लगा नहीं नहीं भाई, कोई चीज दूसरी भी होती है, एडवर्स ओपिनियन भी होता और डिस्क्लेमर भी होता। तो डिस्क्लेमर तब होगा कि जब आप किसी चीज के ऊपर ओपिनियन अपना फॉर्म ही नहीं कर पाए। अगर आप सपोज कीजिए डेटर्स के ऊपर आपके पास कुछ नहीं आ रहा, तो कम से कम डेटर्स के ऊपर तो आप डिस्क्लेमर देंगे, और वो डिस्क्लेमर देके फिर आप क्वालिफाई कर दीजिए रिपोर्ट को फर्दर नीचे। और एक है होता कि पूरे अकाउंट्स को, मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपके अकाउंट्स तो पड़े हैं CBI में और आपको सिर्फ फोटो कॉपीज दी जा रही जो सर्टिफाइड भी नहीं है, तो आपको डिस्क्लेमर ही देना पड़ेगा। मुझे नहीं पता साहब कि इसमें क्या है, किस फाइल के नीचे कौन सा सांप पड़ा हुआ, मुझे नहीं मालूम। So to my mind, I am unable to express my opinion with regard to the true and fair view, with regard to profit and loss account or with regard to the balance sheet of this particular organization. Diverse opinion के लिए ये जरूरी है कि आपका पूरा व्यू बदल जाए उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब होता है कि भाई मैंने जो कहा कोई एक आधा आइटम उसमें क्वालिफाइड है, परंतु ऑन दी होल मुझे लगता है कि ये मोटा मोटे रूप से ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है। परंतु एक अगर ऐसी आइटम आ जाए जिससे कि मेरा पूरा ओपिनियन ही बदल जाए कंपनी के बारे में, वो लॉस मेकिंग और मैं प्रॉफिट मेकिंग दिखा रहा हूँ कंपनी को, तो फिर इट इज नॉट ट्रू एंड फेयर। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। एक पूरी एसेट्स मेरी गायब होने और वो मेरी सपोज कीजिए 30,000, अगर मेरी बैलेंस शीट है 15 करोड़ की और उसमें से एक एसेट हो मेरी 7.5 करोड़ की या 5 करोड़ की और उसके बारे में बिल्कुल वो गायब है, तो फिर मैं वो एडवर्स ओपिनियन ही है, फिर वो मेरा कहीं पे क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। मुझे अभी तक याद है जब मैं रीजनल काउंसिल चेयरमैन था 88-89 में, तो त्यागराजन जी होते थे डिप्टी C&AG, केम टू अटेंड आवर कॉन्फ्रेंस, वन ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस, एंड ही डिलीवर्ड वन ऑफ द लेक्चर्स। उन्होंने कहा यार कई बारी ऑडिटर्स की रिपोर्ट पढ़ के ये लगता है कि एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट है और डॉक्टर ये कह रहा है दैट हिज ब्रेन इज डेड, हिज लंग्स आर गॉन, हिज किडनीज आर नॉट फंक्शनिंग, सब्जेक्ट टू दिस पेशेंट इज हेल्दी। कहने लगे मुझे आज तक ये सर्टिफिकेट ही नहीं समझ आया। कहने लगे आप ये मतलब कि डॉक्टर ये कहे कि ब्रेन डेड है, किडनीज जा चुकी हैं, लंग्स जा चुके हैं, सब्जेक्ट टू दिस पेशेंट इज हेल्दी। कहने लगे आपकी कई रिपोर्ट्स पढ़ के मुझको ऐसा ही लगता। वो उन्होंने एक संदर्भ था, हमारे हिमाचल प्रदेश की कोई कंपनी थी, उसकी कोई गवर्नमेंट की स्टेट अंडरटेकिंग, उसमें ऑडिटर ने 180 से ऊपर क्वालिफिकेशंस दी, 180 से ऊपर, ये ध्यान रखिएगा, फिगर में दे रहा हूं आपको। 180 से ऊपर क्वालिफिकेशन देने के बाद नीचे लिखता है सब्जेक्ट टू दिस इट इज ट्रू एंड फेयर।
यार मुझे तो समझ ही नहीं, 180 क्वालिफिकेशन देने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं कंपनी के अंदर, बचता कुछ नहीं बचता। तो फिर जब हम काउंसिल में गए 98 में, तो हमने 99 में एक स्टेटमेंट ऑन ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन होता था जो बाद में विड्रॉ हो गया, उसमें एक चेंज करवाई और उसमें ये लिखवाया कि अगर आपकी क्वालिफिकेशंस की वजह से आपकी प्रॉफिट की फिगर लॉस में आ जाए या सब्सटेंशियली लॉस में आ जाए या सब्सटेंशियली प्रॉफिट डाउन हो जाए, तो उस केस में आप ये नहीं कह पाएंगे किसी भी सूरत में कि ये दिस रिफ्लेक्ट्स ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ये ट्रू एंड फेयर व्यू बड़ा एक अजीब सा मसला है। तो कई जगह पे ट्रू एंड फेयर नहीं होता है, फिर कभी टाइम मिलेगा तो उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। और एक है आपका मैटर ऑफ एम्फेसिस। एम्फेसिस ऑफ मैटर वो चीज है कि जो कुछ चीज आपकी बैलेंस शीट के अंदर या पीएनएल के अंदर है, पर आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आप उसको फर्दर अपनी एक अनसर्टेनिटी बताना चाहते हैं। कोई कंपनी में केस चल रहा है, केस बड़ा है, परंतु उसका आउटकम आप नहीं बता सकते आज की डेट में, तो आप एम्फेसिस ऑफ मैटर में वो बात डाल देते हैं कि भाई इनका ये केस चल रहा है, उसके आउटकम का कल कोई इफेक्ट आ सकता है, वो एम्फेसिस ऑफ मैटर में आप डाल सकते हैं। उसमें आप क्वालिफाई नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता नहीं कि कल उस केस का क्या होगा बेसिकली, तो आप उसको एम्फेसिस ऑफ मैटर में डाल देते हैं। और एक है की ऑडिट मैटर्स, वो है 701 के अंदर। की ऑडिट मैटर्स के वो सब मसले हैं जो आप पूरे साल में मैनेजमेंट के साथ चर्चा में रहते हैं, पूरे साल आप मैनेजमेंट के साथ चर्चा करते रहते हैं, जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का हो, इंटेंजिबल वैल्यूएशन का हो, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का हो, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स का हो, जिनके ऊपर आपकी मैक्सिमम चर्चा मैनेजमेंट के साथ होती है, वही आपके की ऑडिट मैटर्स बनते हैं। परंतु की ऑडिट मैटर्स को आप एग्जामिन करते हैं और अगर आप उस पर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आप उसको रिपोर्ट को क्वालिफाई नहीं करते। आप ये कहते हैं कि ये मेरे की ऑडिट मैटर्स तो हैं, बट आई एम नॉट क्वालिफाइंग द रिपोर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर्स। जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन का है, आप ये कहते हैं कि भाई इनकी इन्वेंट्री जिस तरीके की है इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है, परंतु ये मेरा की ऑडिट मैटर नहीं है। मतलब की ऑडिट मैटर तो है परंतु मेरा सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्वालिफिकेशन नहीं, क्योंकि इन्होंने किया ठीक हुआ है वैल्यूएशन को, परंतु कल इसकी फ्लक्चुएशन का असर आ सकता है बिजनेस के ऊपर, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। तो मैं यहीं पे रुकना चाहूंगा आज की डेट में, तो क्योंकि इट्स ऑलरेडी 9:15 बेसिकली। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस आई विल लाइक टू आंसर दोस क्वेश्चंस। परवीन जी और मुकुल जी। सर एक्चुअल में जिस तरीके से आप समझा रहे हो ना सर, कोई वर्ड बीच में बचता, कोई स्पेस बचता ही नहीं है कि कोई क्वेरी आ जाए। हाँ नहीं, फिर भी अगर किसी का कोई सवाल हो Yes, तो sir. मैं डेफिनेटली आंसर करना चाहूंगा। सर आरपी विजय जी, सर अनम्यूट करिए प्लीज। चोपड़ा साहब। हाँ जी चोपड़ा साहब नमस्कार, आरपी विजय बोल रहा हूँ जयपुर से। 1 मिनट सर। हाँ जी बताइए सर। हाँ सर, मेरा ये जो आपने सब चीज ये बताई ये होती है, जैसे कैश इन हैंड एक्चुअली हकीकत में बहुत ज्यादा होता है। और जो आपने बात बताई कि जो 50,000 आपको पेमेंट करना है और 5 लाख का कैश इन हैंड है या 50 लाख का कैश इन हैंड है, पर वो 50,000 रुपए अपने बैंक से निकाल करके पेमेंट करते हैं। तो ऐसी स्थितियां आती है, ये प्रैक्टिकल एक्चुअली होता है कि लोग बात क्या होता है कि सपोज कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अब उसमें कोई नंबर 2 का पेमेंट करते हैं, अब वो क्या है कि उनके पास एक्चुअली केस में होता नहीं है, वो निकालते हैं बैंक से और वो कैश इन हैंड को वो ऐसे एज इट इज रख लेते हैं। इस चीज को हमने कई बार वो रह नहीं सकता सर, वो रह नहीं सकता। वो किसी को बाद में एडवांस दिखाए क्या करें, मैं इसमें जाना नहीं चाह रहा हूँ, पर आपको ये बता सकता हूँ अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि ये होता है तो फिर गड़बड़ काम है, बस यही आपको बता सकता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ साहब कि बेसिकली ये एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं, ये बिजनेस की प्रॉब्लम है। अब ये बिजनेस की प्रॉब्लम है। देखिए ये प्रॉब्लम अल्टीमेटली बिजनेस की नहीं रहती, ये प्रॉब्लम हो जाती मेरे ऑडिट प्रोफेशन की। उसने तो पैसा जहाँ देना था दे दिया, कल फंसेगा कौन? फंसूंगा तो मैं। एक्चुअल बैलेंस शीट में तो होता नहीं है, पैसा तो होता नहीं उनके पास। नहीं तो दिक्कत मैं ये है कह रहा हूँ कि पैसा उनके सब पास है ऐसी नहीं सिचुएशन आती और है वो तो इसको कैश इन हैंड रिपोर्ट दिखाए कैसे जा किया रहे हैं। जाए?
तो मैं आपको हाँ, बार बिल्कुल बार ये कैसे कह रहा हूँ कि अगर एक असेसिंग ऑफिसर सही ढंग से पढ़ना शुरू करे और किताब को एग्जामिन कर ले तो वो पार्टी से कुछ नहीं मांगेगा, वो मांगेगा तो कहीं और से मांगेगा। नहीं, मेरा तो सिर्फ ये था साहब आपसे कि इसको किस तरीके से अपन एक्चुअली अगर इसको दें, अपन क्वालिफाई करें तो किस तरीके से उसको मेंशन किया है। नहीं आप लिखिए कैश इन हैंड वेरीफाई नहीं हुआ और क्या करेंगे, वी आर अनेबल टू वेरीफाई द कैश इन हैंड। मेन रिपोर्ट के अंदर ही अपन को लिखना पड़ेगा। दीजिए आप। ठीक है सर। और ऐसे ही जैसे डेटर्स है, डेटर्स को हमने लिखा भी सही, डेटर्स के लिए हमने चिट्ठियां भी डाली, क्रेडिटर्स के लिए चिट्ठियां भी डाली, बट कई बार क्या होता है कि मेजर कई बार तो आ जाता है और कई बार नहीं आता है, तो उसके अंदर किस तरीके से रिपोर्ट किया देखिए जाए। मुझे ये समझ आता है कि जिस पार्टी का बैलेंस पिछले साल कंफर्म हो गया, इस साल नहीं भी आया कोई बात नहीं, पर जिस पार्टी का, बड़ी पार्टी का बैलेंस किसी भी साल कंफर्म नहीं हो रहा, वो रिस्की मामला बॉस। ओके, कम से कम मैटर्स ऑफ एम्फेसिस में डाल दीजिए और कहीं नहीं डालना। तो आप ठीक है सर। थैंक यू सर। रजनीश सिंह जी सर, रजनीश सिंह जी प्लीज आस्क। नमस्ते। मेरा क्वेश्चन है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल में मोस्ट ऑफ द कंपनीज, जस्ट अ मोमेंट मैं तो वीडियो ऑन करने के लिए लगा है, तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर इट इज सीन कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो छोटी लेवल की हैं वो अभी भी आपको पूरा एक कंप्लीट जो आईएफसी का जितना इकोसिस्टम है वो कंप्लीटली कितना फंक्शन कर रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं दे पाती, और आप जो अपने ऑडिट के प्रोसेस में डील करते हैं उससे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं निकलती है। एंड जनरली सारे ऑडिटर्स उस पर एक जनरल रिपोर्ट देके कि भाई ये स्मॉल कंपनी है या सिंपल ऑपरेशंस हैं और इस तरह से करके उसको कर रहे हैं। एंड इसके बारे में आप कुछ कमेंट करें प्लीज। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा सर, इसमें शायद मैं भी उतनी ही गलती पे होऊंगा जितने आप हैं, कि कहीं ना कहीं पे हमें सिस्टम में इम्प्रूवमेंट करवानी पड़ेगी। पहले साल 10%, फिर 20%, फिर 30%, फिर 40%, कम से कम 3 साल में उसको इस लेवल पे लाके खड़ा करें कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, बस इतना है। देखिए 100% छोटी फर्म्स उतने कंट्रोल्स को नहीं ला पाएंगी, परंतु जितना हम हर साल में इम्प्रूवमेंट कर देंगे उतना बढ़िया काम। यस, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन है राजकिशोर जी का। ड्यू टू वन प्रॉब्लम, वन पेट्रोल पंप, one petrol pump assessee let out his pump without any agreement to another person. He operates the pump in his own accounts. He pay the petroleum company to purchase HSD and take all the sales proceed and deposit in his account and continue it during the whole year. What is the status of his accounts? Sir, fees का adjustment करना दिया है। मैं समझा ही नहीं, सवाल नहीं समझा सर, मैं सवाल नहीं समझा। राजकिशोर जी एक बार हैंड रेज करिए आप। राजकिशोर जी, राजकिशोर जी मैं आपको अनम्यूट करता हूं। राजकिशोर प्लीज अनम्यूट। हाँ यस सर प्लीज अनम्यूट। यस सर प्लीज आस्क। यस सर, थैंक यू। यस सर। नमस्ते सर। नमस्कार जी। मेरे पास एक क्लाइंट है जिसके पास फंड प्रॉब्लम होता रहता है, वो पेट्रोल पंप वाला क्लाइंट है। हाँ जी। फंड प्रॉब्लम होने के कारण वो 2-3 लोगों से साल के बीच में ही जिसके पास फंड होता है उसको विदाउट एग्रीमेंट वो लेट आउट करता है और अपने अकाउंट से वो डीडी बना के एचएसडी खरीदता है, पेट्रोलियम कंपनी को देता है, और वहां से सारे जब परचेज आ जाते हैं, सारे जो कंप्लायंस है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो पेट्रोल पंप के नाम से उससे होता है, लेकिन फंडिंग वो करता है और वो सारा ये फंडिंग डिपॉजिट भी और पेमेंट भी, कैश सेल प्रोसीड भी अपने अकाउंट में ले लेता है और फिर परचेज करता है, फिर सेल करता है, और ये प्रोसेस वो करता है। देखिए ऐसा है, ये तो टोटली वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट है विद द पेट्रोलियम कंपनी। इसमें वो सिर्फ बेसिकली रेंटल इनकम खा रहा है, बाकी कुछ नहीं खा रहा। जी सर। इफ यू आस्क मी, he is only taking the rental income, whereas he is supposed to run the petrol pump. तो वो सिर्फ अगर आप ये प्रूव कर सके तो आप क्वालिफाई करेंगे, अगर आप प्रूव नहीं कर सकते तो फिर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी? अब इसमें ये आ रहा है सर कि उसके लेजर में 2-2 करोड़ का जो वो अपने अकाउंट से वो डीडी भेज रहा है या आरटीजीएस एनएफटी कर रहा है, तो उसके अकाउंट में खड़ा हो रहा है। और आप अगर डीडी भेज रहे हैं अपने अकाउंट से और कैश डिपॉजिट ले रहे हैं उसके बदले, तो ये सर ऑपरेशन
कैसा है? कैश डिपॉजिट किससे ले रहा? कैश डिपॉजिट सेल प्रोसीड्स हुआ, वो अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर लिया, वहां से फिर डीडी भेज दिया। नहीं तो ऐसा करेगा ही ना बॉस। ऐसा देखिए, अब मैं फिर वो लेट आउट का तो दिखाई नहीं रहा कि उसने लेट आउट किया हुआ। जी सर, नहीं दिखा रहा। और ये account थर्ड पार्टी के अकाउंट से डीडी बना के भेजना और उसके अपने बैंक अकाउंट से ऑपरेट ना करते हुए वो उसके अकाउंट से अच्छा, ऑपरेट थर्ड पार्टी के अकाउंट से डीडी बना के भेज रहा, तो फिर वो जी सर 269 को सेटिस्फाई कैसे कर रहा? फिर तो लोन हो गया। हाँ यार, राइट सर, ये तो लोन आप टैक्स ऑडिट में बताइए, आप टैक्स ऑडिट में क्या कर रहे हैं? बाकी ऑडिट की तो बात छोड़ दीजिए, उसमें 269 की वायलेशन है सीधी। ठीक है, तो यही मैं पूछ रहा हूँ सर, उसमें क्या क्वालिफिकेशन? उसमें आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा हर सूरत में। ये तो अगर थर्ड पार्टी के अकाउंट से जा रहा है तो फिर तो बुक एंट्री ही हो रही है ना लोन की। या सर, बुक एंट्री हो रही है, उसका अकाउंट करोड़ों में खड़ा हो रहा है और वो डीडी से खड़ा हो रहा है, आरटीजीएस से वो डेबिट हो रहा है और उसके बाद कैश डिपॉजिट से क्रेडिट हो रहा है। उसमें तो ही इज लायबल टू बी, एक्चुअली उसका तो गोइंग कंसर्न विल बी इन चैलेंज बिकॉज हिज entire petrol pump is liable to be cancelled if you ask me. सर वो तो खैर, वो पेट्रोल पंप वाले को तो ये मतलब है कि मेरे पास फंड आ रहा है, मैं बेच रहा हूँ। बॉस ऐसा है ना, आप समझ ही नहीं रहे बात को मेरी। पेट्रोल पंप किसको मिला? पेट्रोल पंप मिला मुझे कि भाई मुझे आपने वो करना है, पर आप रन तो एक्चुअली कोई और कर रहा है ना उसके बिहाफ पे। ठीक। और ये एग्रीमेंट नहीं है, इसीलिए ट्रैक नहीं हो रहा है कि वो कौन फंड दे रहा है। नहीं, वो ये तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। इसको अगर आप यहाँ पे बैठ के सुलझाना चाहेंगे तो थोड़ा मुश्किल काम है, परंतु ये आपको बता सकता हूँ इसमें 269 की सबसे बड़ी नॉन कंप्लायंस है, बाकी तो छोड़ दीजिए आप। इसका लिटरेचर क्या हो सकता है सर क्वालिफिकेशन के लिए? आप मुझे एक पेज का नोट भेज दीजिए, मैं आपको राइटिंग में भेज दूंगा। थैंक यू सर। फीस नहीं लूंगा, ये बता सकता हूँ सर। चलिए सर, 9 से 9 फीस नहीं लेते। ठीक है, ओके। परवेसिव एंड नॉन परवेसिव का कुछ एग्जांपल? देखिए, मैंने ऑल परवेसिव और नॉन परवेसिव का एग्जांपल दिया कि आपके डेटर्स हैं, सपोज कीजिए 5 करोड़ के, और 5 करोड़ में से 5 लाख के ऐसे हैं जो नॉन रिकवरेबल हैं, तो आपने उसका प्रोविजन नहीं किया। अब 5 करोड़ के अगेंस्ट 5 लाख का प्रोविजन नहीं किया, आप प्रॉफिट आपका सपोज कीजिए 25-30 लाख रुपया है, तो आपने क्वालिफाई कर दिया कि to this extent the profits are overstated, no issue on that। पर आप दूसरे स्थिति सोचिए कि आपका प्रॉफिट तो 25 लाख और आपने नॉन प्रोविजनिंग कर रखी हो 5 करोड़ की, तो फिर तो रीडर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप झूठ दिखा रहे हैं ना कि आप प्रॉफिट मेकिंग है, आप तो लॉस मेकिंग है। उसमें आप फिर ये नहीं कह सकते दैट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू दिस एक्सटेंट इज ओवरस्टेटेड और अंडरस्टेटेड, फिर आपको नॉट ट्रू एंड फेयर भी देना पड़ेगा। ओके और ओके सर, थैंक यू। यस सर 2 मिनट बस सर, क्योंकि सर जिस तरीके से आप बताते हो उसमें के बाद सर कोई क्वेश्चन बचता ही नहीं। और नो डाउट सर, जो चीजें आपकी है अगर उनको फॉलो कर लिया जाए तो वो अपने आप के अंदर बहुत बड़ी चीजें हैं, वो सब कुछ आ गया वो लाइफ का। और सर जो आप बता रहे थे ना कि आपके टाइम पे ये ऐसे नहीं थे सर, आपके टाइम पे तो जो चीजें, जो कंसेप्ट आप फॉलो करते थे वही अपने आप स्टैंडर्ड थे सर। वो जरूरत हमको पड़ रही है, इसलिए स्टैंडर्ड ये लागू करने पड़े इंस्टीट्यूट को भी। चलिए ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। रामशंकर जी। Thank you, sir. Thanks for your deliberation. Now, I would like to request our past chairman and executive member of Patna branch, C. Amit Bhattacharya, sir, to please give vote of thanks. Amit ji, please unmute. Amit ji, please unmute. Okay, sir. Yes, sir. Can I audible? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Okay, sir. Ramashankar. Thank you, Ramashankar. First of all, I would like to thank all participants for being with us throughout the such webinar. What a wonderful webinar it is. Sir, hats off to you, sir. Amarjit Chopra, sir. Now I would like to thank Amarjit Chopra, sir, for such wonderful delivery on auditing assurance topics. Normally अपने कुछ गलतियां कर जाते हैं, आपने सही बताया सर, रिगार्डिंग कैश वेरिफिकेशंस और स्टॉक स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग। मेरे को लगता है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी आज पार्टिसिपेंट वेबिनार में मौजूद थे, उनको
बहुत हद तक कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला ही है. Thanks a lot, sir. Now, Anuj Gopal sir, our own official members, I would like to thank C. Devendra Somani sir, Chairman of CIRC. Also, I would like to thank C. Dinesh Kumar Jain sir, Secretary of CIRC. And now I would like to give my gratitude to Patna branch Chairman C. Pravind Singh, Vice Chairman C. Mukul, CA Ramasankar, Secretary of Patna branch, and of course all staff, office staff, without whom such a webinar is not possible. Thanks a lot, sir. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you very much, Chopra sir. Thank you very much. Thank you. सर आपकी एक लाइन तो सब चीजें बिल्कुल एकदम अपने आप क्लियर हो जाती है सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू साय साहब. थैंक यू पवन जी, रामशंकर जी, अमित जी. Thank you, sir. जी थैंक यू सर. Thank you. सर एंड कर दे सर. Thank you, sir. बिल्कुल.